Very good morning to all my dear students. I, Shweta Chaurasia, welcome you all for the knowledge session. Thank you everyone for being a part of Vikalp Academy activity on this vibrant Sunday. Flow of the session will be starting with the importance of reading newspaper by Shubham Dwivedi sir, followed by exam strategies by Aditi ma'am. We will start with the importance of reading newspaper. I hope we all understand this thing that despite of any career option that you choose in your life, newspaper reading is always important in one's life. So before we start with this session, I just wanted to give you a brief introduction about Vikalp Education. Vikalp Education had started in 2013 in Nagpur. We are expertise in aptitude training. So we have trained students for campus recruitment training, for competitive exam, and also for CAT, CET, and other MBA entrances. So Vikalp Academy is a part of Vikalp Education where we are dealing with after 12th career options. So there we are training and guiding students for CLAT, IPM, BBA, and hotel management. And not only this, we also provide career counseling through psychometric test. So we are going to start with the session on newspaper reading. Shubham sir, shall we start? Sure. Okay, Sure. to give you a brief introduction about Shubham sir, sir is associated with Vikalp Academy. He is taking current affairs and static GK with us. Okay, so मैं अभी सबको mute कर रहा हूँ and we'll have that question answer session and all those things जो भी हमारी बातें होंगी वो सब के सब chat box में होंगी जैसा कि पहले से हो रहा था. हाँ, बीच में अगर किसी चीज पे debate या discussion होगा then we'll go for voice and all those things जो भी इसमें available होता है इस tool में. Right, hello, good morning. And I hope I'm audible and visible. Yes or no? Good morning, Pratha. Good morning, Madhushri. Good morning, Shani, Gauri. Okay, I guess everybody's here. Okay, so हम start करेंगे importance of reading newspaper, right? And the basic thing is कि जब मैं newspaper बोलता हूँ ना तो हमें कुछ चीजें जो हैं वो clear करने की जरूरत होती है. Newspaper that clearly means कि we are talking about general awareness. The thing is the most ignored part in our education system is making student aware, right? What actually is happening, what that means, and what is going to be happened after this. इसके क्या consequences हो सकते हैं, इसके क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं, इसकी क्या दूसरी चीजें हो सकती हैं, right? Lots of stuff. The thing is कि हमें newspaper पढ़ना, हमें news देखना, हमें news समझना, ये इतना important हो जाता है कि उसके बिना शायद हम एक अवेयर सिटीजन नहीं है. नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम, तुम क्लैट दे रहे हो दैट्स वेल एंड गुड, तुम आईआईटी दे रहे हो वेल एंड गुड, तुम कैट दे रहे हो, तुम आईपीएम दे रहे हो, तुम होटल मैनेजमेंट दे रहे हो, हर जगह पे अगर आप अवेयर नहीं हो तो फ्रॉम बीइंग माय साइड एंड फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो तुम स्मार्ट नहीं हो, राइट? एंड यू आर सपोज्ड टू बी स्मार्ट. एक्चुअली तुम्हें स्मार्ट होने की जरूरत है. एंड एवरी सिंगल एग्जाम, एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन व्हिच वांट्स सम स्टूडेंट टू बी विद देम, they want smart students so that their college can grow, right? अगर तुम एनालिस्ट में देखोगे, अगर तुम एनयूजीएस में देखोगे, अगर नलसार में देखोगे या आईआईएम अहमदाबाद में देखोगे या बेंगलोर में देखोगे, तो उनसे बेहतर जो अदर आईआईएम्स या अदर एनालिसिस हैं उनसे बेहतर सिर्फ यही चीज है कि क्राउड ज्यादा अच्छा जाता है. और जब क्राउड ज्यादा अच्छा होता है तो कंपटीशन ज्यादा अच्छा होता है. एंड अ हेल्दी कंपटीशन इज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट एजुकेशन एज वेल एज कॉलेज, राइट? सो आप किसी भी उसमें हो, डजंट मैटर, तुम यूजी करना चाह रहे हो, तुम पीजी करना चाह रहे हो, इन सब के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? सो हम जाएंगे न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस पे, हम जाएंगे न्यूज़पेपर एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, राइट? क्या न्यूज़पेपर होने चाहिए, क्या सोशल मीडिया, क्या डिजिटल मीडिया से हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हमें विजुअल मीडिया से क्या समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. हम कुछ भी नहीं देख सकते, हम कुछ भी अपने दिमाग में नहीं बैठा सकते, हम कुछ भी के बेसिस पे स्मार्ट नहीं हो सकते, राइट? दैट क्लियरली जो है हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि उसका इंपॉर्टेंस कैसे होगा, राइट?
Okay, so let's move to topic number 1, that is importance of reading newspapers. Right now, why newspapers? Anyone, हमें न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ. Okay, good, Gauri. Good, Shwani. Good, good. Okay, okay. Exactly. If you don't know what is happening, right, then how can you say you are a, क्या कहना चाहिए, smart person? अगर तुम्हें ये नहीं पता कि अमेरिका में कोविड-19 की क्या कंडीशन चल रही है, राइट, तो तुम शायद अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कनेक्टेड नहीं, राइट. नाउ अब अगर अपन ध्यान से देखें, राइट, हैव यू एवर एडमायर समवन टॉकिंग अबाउट सम करंट इश्यूज वेरी वेल? आई मीन, आपके आसपास कोई भैया होंगे, आपके आसपास कोई मम्मी पापा के रिलेटिव होंगे, आपके आसपास दादाजी होंगे, अंकल आंटी होंगे, कभी उनको किसी करंट मुद्दे पे बात करते हुए देखा है? राइट, क्या तुम्हें लगता है कि यार, हाउ, लुक एट दिस गाय, मतलब दिस गाय इज लाइक नेक्स्ट लेवल, इसको सब पता है, राइट? कभी सोचा है कि उनको सब कैसे पता है, जबकि वो यहाँ हैं और वो बातें कर रहे हैं कि दिल्ली में कोविड की क्या कंडीशन है, या राजस्थान में जो गवर्नमेंट है, स्पीकर है, सीएम है, सचिन पायलट है, उनके बीच में क्या चल रहा है ना, व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस आर सचिन पायलट इज हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शन सचिन अशोक गहलोत इज हैविंग? कभी सुना है, कभी उसको एडमायर किया है? राइट. ओके, सो वो एडमायरेशन जो होता है ना, वो इसलिए है क्योंकि वो जो भी पर्सन है, राइट, वो अपडेटेड है, नंबर 1. नंबर 2, वो अपडेट होने के अलावा जो उनके पास नॉलेज है उसे वो एक्सप्रेस करने में केपेबल है, राइट. न्यूज़पेपर्स जो होते हैं इन दोनों चीजों में हेल्प करते हैं, राइट. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई न्यूज़पेपर, 3 पॉइंट लिखे. नंबर 1, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम्स. ऑब्वियसली अगर मैं क्लैट की बात कर लूं तो क्लैट ने तो पूरा का पूरा एग्जाम जो है रीडिंग बेस्ड बना दिया है. नाउ जब रीडिंग बेस्ड है तो डेफिनेटली, अच्छा, ये पहली बार है पूरे के पूरे, मतलब मैंने इतने सारे अलग अलग एग्जाम्स के बारे में जाना, इवन मैंने आईआईटी दिया है, राइट, और मैंने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स देखे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब जनरल नॉलेज का सेक्शन इस तरीके से आया है कि आप सीधे तौर पे किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे, किसी टॉपिक पे पूरा पैसेज देके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, गूगल करने की कोशिश कर रहे हो, राइट, कि आप किस तरीके से उसको निकालो, किस तरीके से उस पर क्वेश्चन प्रेजेंट करो, और कितने अच्छे से आप वो चीजें देख सकते हो. अच्छा, क्लैट का अगर आप पैटर्न देखें, क्लैट के अगर सैंपल पेपर्स देखें, तो यू रियलाइज कि वो दोनों चीजों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो फैक्ट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, वो परसेप्शन को भी इन्वॉल्व करते हैं. लास्ट टाइम पे जब अर्णव गोस्वामी वाला पैसेज आया था, राइट, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर अर्णव गोस्वामी वाला पैसेज, क्लैट एस्पिरेंट्स? गुड 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 गुड, प्रतीक, प्रथा, गुड गुड, राइट. तुम्हें क्या लगा, वो सीधा सीधा फैक्ट्स में था? बिल्कुल नहीं था. वो फैक्ट्स भी था, उसमें परसेप्शन क्या कहना चाह रहा है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो भी था, राइट. तो ये बहुत अलग हो जाता है. रीडिंग न्यूज़पेपर कैन हेल्प यू इन डिफरेंट एग्जाम्स. आपके आसपास कोई अगर आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है, या कोई जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, कोई आईएफटी कर रहा है, कोई कैट की कर रहा है, कोई बैंकिंग की कर रहा है, राइट, ट्रस्ट मी, every single person needs current affairs, right? Some people are directly stick to the points कि हाँ हमें facts पता होने चाहिए, हमें आगे जाना है. There are people who goes a bit further, right, जिसको आप जनरल अवेयरनेस कहते हो. जब आप द हिंदू उठाते हो और वो एडिटोरियल पेज उठा के देखते हो, तो वहां पे कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जिनका नाम लिखा होता है उस एडिटोरियल में, और वो उस एडिटोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि आपको कुछ ऐसा मिले जो शायद आपके काम का हो, जो शायद आप नहीं जानते हो, बिकॉज सामने वाला एक्सपर्ट है और आपको बताने में और वो एक्सप्रेस करने में क्या है, केपेबल है. दैट इज वाई व्हाट, वो एडिटोरियल पेज इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पेज इंपॉर्टेंट होता है. कोई इकोनॉमिक्स की न्यूज पढ़ना चाहता है, कोई इंटरनेशनल न्यूज पढ़ना चाहता है, कोई एडिटोरियल में रहना चाहता है, कोई नेशनल न्यूज पढ़ना चाहता है, राइट. सो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये दोनों की दोनों जो है वो अपने उसमें आ जाते हैं, राइट. दैट इज व्हाट रीडिंग न्यूज़पेपर्स है. क्लियर हो रही है? जब ये चीजें होती हैं, देन उसके बाद अपन आते हैं इसमें अपने एग्जाम्स के उसमें की. ओके, क्या तुम में से कभी किसी ने इंटरव्यू या जीडी के बारे में सुना है?
Yes or no? सुना आई मीन सभी ने ऑलमोस्ट ग्रुप डिस्कशन राइट इंटरव्यू ये सारी चीजें पढ़ी ना. अगर आप ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के बाद का बात कर रहे हो, आई मीन इफ यू आर इवन अपेयरिंग इन डिफरेंट एग्जाम्स लाइक सिम्बायोसिस और सम प्लेस, और तुम सिम्बायोसिस का इंटरव्यू देने भी जाओ जैसा कि पिछले साल तक हो रहा था, right? You realize they ask you questions based on current affairs and general awareness, and they want that sort of information जिसको आप ये कहो कि एक स्मार्ट स्टूडेंट प्रेजेंट कर पाता है, राइट? तो चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो सीधे तौर पे क्या हो, इंटरव्यूज हो, चाहे हमारा अपना पर्सनल नॉलेज हो, चाहे हमारा एक अच्छा सिटीजन बनने का प्रोसेस हो, इन सब के लिए हमें अपडेटेड रहना पड़ता है. एंड उसके लिए अच्छा न्यूज़पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा न्यूज सोर्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ऐसे किसी न्यूज सोर्स पे रिलायबल नहीं हो सकते जिसका लेवल उस तरीके का नहीं है जो हमें बेहतर बनाने की तरफ, राइट? हम अभी डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, राइट? व्हाट शुड यू रीड, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिमेंबर हमने क्लासेस में डिस्कस किया था कि हमें क्या नहीं देखना चाहिए, याद है? कौन से न्यूज चैनल्स हैं, कौन से हैं? नाउ इमेजिन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द राजस्थान's political crisis, right? And for that we need experts, and for that we need a newspaper that is having a national level approach, an independent journalism approach, and we need something जिसके बाद अपन ये समझ पाते हैं कि अपने को किस लेवल पे वो जो सिचुएशन है उसको डिस्क्रिप्टिव वे में चाहिए. Now, if you are considering local newspaper, जिनकी पकड़ local news के लिए बहुत अच्छी, I mean, nobody will give importance to a news that a city, again, for example, मान लेते कि भोपाल में ही, पुराने भोपाल में किसी ने शराब पी के हंगामा किया है, तो is that a news that is somewhere associated with you? No, ये नहीं है. ये तुम्हें अवेयर नहीं बताता, ये लोगों की पर्सनल गलतियां है, हमारी नहीं है. बट इफ यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से भीलवाड़ा, द राजस्थान, वन ऑफ द प्लेस इन राजस्थान, इट वाज हैविंग very large number of cases of COVID-19, एंड वहाँ के कलेक्टर ने किस तरीके से उसको कंट्रोल किया एंड पूरे इंडिया को एक लॉकडाउन और कोविड-19 को कंट्रोल करने का एक मॉडल प्रोवाइड कराया, राइट? दैट इज द न्यूज वी वांट, राइट? सो न्यूज़पेपर्स में भी हमारा लेवल अच्छा होना चाहिए. द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, राइट? ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो रेफरेंस बन जाते हैं, राइट? अगर कोई तुम्हारे आसपास अगर कोई यूपीएससी पीएससी की तैयारी करता होगा तो तुम्हें पता होगा कि द हिंदू बिकम्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ, कि वो द हिंदू से नोट्स बनाते हैं भाई, राइट? क्योंकि वो तुम्हें नेशनल इंटरनेशनल हर जगह पे एक अच्छा जर्नलिज्म प्रोवाइड कराते हैं. समझ में आ रही है क्या, राइट? सो द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके एडिटोरियल्स कई जगह बहुत अच्छे होते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स है, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्री प्रेस है एंड सम अदर न्यूज़पेपर जिनकी पकड़ नेशनल लेवल पे है, राइट? दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ जब हम प्रिंट मीडिया से बाहर जाते हैं तब हमारे पास आता है क्या, डिजिटल मीडिया, जिसमें आप सबसे पहले विजुअल मीडिया में और सोशल मीडिया में जाते हैं, राइट? There are channels, मैं नाम नहीं लूंगा, right, which has nothing to do with good journalism. Yes or no? Right? I have seen a news, मैं तुम्हें सीधा सीधा एग्जांपल बताता हूँ. We are having some current situations, critical situations like Assam flood, right? We are having COVID-19 issue. We are having political crisis in Rajasthan, right? We are having some other issues in border, right? But a newspaper, right, and a news channel was running a news for almost 45 minutes, right, जिसमें वो ये चीज बता रहे थे कि किस तरीके से इंडिया को परेशान करने के कारण बॉर्डर्स में चाइना में इंद्रदेव का कहर बरपा हुआ है और वहां पे फ्लड आई हुई है. कैन यू इमेजिन, राइट? वी आर हैविंग फ्लड प्रॉब्लम इन नॉर्थ ईस्ट, right? We are having flood problem in our home itself. We are having a pandemic going on. We are having an economic crisis going on. We are having an administrative crisis.
in which administration is not capable enough to deal with people. We are having a problem of education that people don't follow social distancing. And yes, the Indradev ka kahar is on China, right? So are we supposed to go through those particular news channels? Yes or no? Is it I mean, think about it. एक न्यूज अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही चली थी, मेरे एक दोस्त ने लिंक भी भेजी थी, बोले कब करेंगे सलमान खान शादी? Is it the news of national interest? Right? Okay, so understand one thing. Do not waste time on news channels which doesn't go for logical and national interest. Just go for 2 news channels, DD News and RST. The RST stand for Raj Sabha TV. Now, I have seen several debates on this particular news channel, right? जो bills आ रहे हैं किसमें अपने पास लोकसभा राज्यसभा में जो डिस्कशन जो डिबेट्स चल रही हैं, राइट? जो करंट इश्यूज हैं उस पे एक्सपर्ट्स आते हैं पैनल्स के फॉर्म में. They don't call political leadership to their debates. They call experts. They present their views, right? And views that are logical, the facts, the information, right? So these are the medias you should go for. राइट नाउ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी नई जनरेशन के साथ आया हुआ है, राइट? आई नो अ पर्सन, मैं आपको बता देता हूँ, गुरुदेव एकेडमिक क्या कहना चाहिए, मुझे उन्होंने पढ़ाना सिखाया है. एंड ही ऑलवेज टेल्स डू नॉट स्टडी फ्रॉम सोशल मीडिया यूनिवर्सिटीज, राइट? देयर आर टन्स ऑफ नॉलेज जो तुम्हें व्हाट्सएप में चिपकाया जाता है, देयर आर टन्स ऑफ नॉलेज जो तुम्हें अलग अलग फेसबुक वेब लिंक्स में, इंस्टाग्राम में, इन दूसरी जगहों पे भेजा जाता है, राइट? डू नॉट become addictive for those informations, right? They're not verified, they are not researched, and we are not supposed to go for those things, right? So ये इग्नोर करने वाला पार्ट बहुत जरूरी है. मेरे गुरु जी हमेशा कहते हैं कि एक समझदार आदमी वो होता है जिसे क्या करना है ये पता हो ना हो कोई बात नहीं, क्या नहीं करना है ये क्लियर होना चाहिए, राइट? सो जस्ट मेक श्योर डू नॉट स्टडी फ्रॉम सोशल मीडिया एंड ऑल दोस. क्लियर? एम आई क्लियर विद दैट? यस और नो? वेरी गुड, थैंक यू. चले नेक्स्ट, लास्ट जो अपने पास सोर्स बचता है रीडिंग का एंड न्यूज का एंड एडिटोरियल का, दैट इज मैगजीन्स, right? They play very important role. मैं आपको बता देता हूँ, magazines are very important. The only thing that today's generation is missing is going through magazines. आजकल आप magazines पे नहीं जाते. Am I correct? आप magazines पढ़ रहे हो क्या? Yes or no? Right? This is what I'm saying. 80% students, 80% people who are live with me, they are saying कि they don't go for newspaper magazines. Just magazines पे जाना जरूरी होता है. मैगजीन्स आपको बहुत सारे कलर्स ना एक साथ देती है विद गुड इंफॉर्मेशन, राइट? इसलिए जो अच्छी मैगजीन्स हैं, राइट, जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करें, देयर आर मैगजीन्स व्हिच आर रिलेटेड टू फीमेल्स, देयर आर मैगजीन्स व्हिच आर रिलेटेड टू मेल्स, हेल्थ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी and अलग-अलग different places. Just try to find out which is the best source you can have, right? But do not ignore magazines, right? Next पे चलते हैं, हम कुछ करंट इश्यूज डिस्कस करेंगे, राइट? मैं करंट इश्यूज ऐसे डिस्कस करूंगा जो मैंने न्यूज़पेपर से, जो मैंने ऊपर सोर्सेस बताए हुए हैं, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैंने उन्हीं सोर्सेस के थ्रू इन टॉपिक्स पे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस, कुछ स्पेसिफिक चीजें जो हैं वो बुलाई हैं, मतलब अपने पास कलेक्ट किया है. एंड फिर उसके बाद हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक लंबा चौड़ा डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? जस्ट टू प्रूव कि हाउ मच important role these particular sources plays, right? While you are appearing in an exam, while you are appearing in an interview, while you are appearing in anything जो पर्टिकुलर एक तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ, राइट? सो सबसे पहले फ्रॉम बॉर्डर्स टू इकोनॉमी, चाइनीज एग्रेशन. क्या चाइना आजकल बहुत उछल कूद मचा रहा है? यस और नो? आई स्टिल रिमेंबर दैट मीम, द लाइफ वाज गोइंग वेरी वेल, देन someone ate bad. Remember?
यस, वो हिंदी में बहुत अच्छा लगता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत चल रही थी, फिर किसी ने चमगादड़ खा लिया, राइट ना। उसके बाद से जो चीजें हो रही हैं, दैट इज क्रिटिकल। आई मीन इफ यू विल सी मेजॉरिटी मेजर इकोनॉमीज जो है वर्ल्ड की, जो सुप्रीम ये कहना चाहिए पावरफुल कंट्रीज हैं, दे ऑल आर समवेयर नॉट हैप्पी विद चाइनीज पॉलिसीज, राइट। अलग अलग लेवल पे अमेरिका इज नॉट एट ऑल हैप्पी। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो चाइना को इस तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना से बुरा कल्प्रिट तो दुनिया में कभी आया ही नहीं। इवन दे फॉरगेट हिटलर, राइट। इंडियन साइड से बात की जाए या अगर मैं यूके साइड से बात की जाए, हांगकांग वाला जो इशू है, राइट, या यूरोपियन यूनियन की तरफ से बात की जाए, या जो साउथ ईस्ट एशिया है, आसियान कंट्रीज की तरफ से साउथ चाइना सी में, अगर मैं क्वाड ग्रुप की बात करूं, तो जो एशिया पैसिफिक में, ओशन में, इन सब में डोमिनेशन एंड इन सब में जो इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज हैं, राइट, इन सब का कहीं ना कहीं वॉयलेशन करना एंड ऑल दोस थिंग, राइट। अच्छा, ये स्पेसिफिक इंडिया के लिए तब होता है जब बॉर्डर्स तक होती। वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एग्रेशन, राइट, जो हर जगह पे है। क्लियर हो रहा है? सो हाउ एंड व्हाई चाइना इज डूइंग दैट, एंड हाउ चाइना बिकम्स this much capable that it can directly challenge the largest economy, America, and one of the fastest growing economy like India. And वो किस तरीके से चेंजेस हुए, क्या हुए, इंडिया के अगेंस्ट क्या कहानी है, इंडिया के लिए इतना ज्यादा नफरत क्यों है, एंड ऑल अदर थिंग। थोड़ा सा डिस्कशन करने की बात करते हैं। अच्छा, मैं बता दूं सोर्सेज में बड़े सिंपल हैं। द हिंदू उठाया था, राइट। द हिंदू के अलावा एक वेबसाइट है द वायर, और एक इंटरनेशनल वेब मीडिया हाउस है द डिप्लोमेट, वो आरएसटीवी की डिबेट। एंड इतने में मेरा काम हो गया था इसको, इस पूरे मुद्दे को समझने में, एग्जैक्टली चाइना इतना एग्रेसिव अभी क्यों हो रहा है, राइट। चलो जरा स्टार्ट करते हैं अलग अलग उससे, राइट। अलग अलग उसमें जब अपन समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले इश्यूज में जाते हैं। साउथ चाइना सी, राइट, क्या ये आज का मुद्दा है? यस और नो? नो, एक्चुअली ये 15 साल पहले का मुद्दा है, जो अब जाके बहुत ज्यादा जो है क्या हो गया है, बड़े लेवल पे देखा जाने लगा, बिकॉज द एग्रेशन इज गेटिंग हायर। जब साउथ चाइना सी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सी, अ वाटर बॉडी, जिससे अप्रोक्सीमेट 35% वर्ल्ड ट्रेड पास होता है। नंबर टू, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस जहां पे लॉट्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेस एंड पेट्रोलियम फ्यूल, ऐसा बोला जाता है, अवेलेबल है, प्रूव्ड है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल सी लॉज एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जो कौन वॉयलेट कर रहा है? चाइनीज नेवी, राइट। इन्होंने क्या किया, जब इनको कंफर्म हो गया कि यहाँ रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे बहुत सारा अपने को प्रॉफिट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो चाइनीज लोगों ने क्या किया, इधर पे ना इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने चालू किए। Now, artificial islands are different. Artificial islands in such a manner कि उससे अपन फाइटर जेट उड़ा सके, राइट। ये कुछ दूसरी बात। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का मतलब है जनता वहां पे रह सकती। आर्टिफिशियल आइलैंड्स इन सच अ मैनर कि वहां से आप फाइटर जेट उड़ाओ, नेवल शिप खड़ी करने का पूरा नेवल बेस बना रहे हो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। सेकेंडरी, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है या एक्सप्लॉयटेशन जोन होता है, उन आसियान कंट्रीज के साथ शेयर ना करने की बात रखना, राइट। ये दूसरा इशू जो है, साउथ चाइना सी जो है वो चाइना जो है उसमें क्या करता है, बात करता है, राइट। उन्होंने 9 डैश लाइन करके क्या किया, एक सिंपल सिंपल सी बात जो है बोली कि भाई साहब, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो हिस्टोरिकल वे अपने पास टाइम है, उसमें सीधे तौर पे साउथ चाइना सी वाज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, और उन्होंने 9 डैश लाइन को बेस बना के दिया कि ये हमारा है, राइट ना। दूसरा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में फ्री ट्रेड के लिए अपने आप को ग्लोबल लीडर साबित करने के लिए $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करना, और फ्री ट्रेड के लिए रोड से लेके सी बेस तक, वाटर बॉडीज से या पूरा का पूरा पुराना सिल्क रोड जोड़ रहे हो, राइट। देयर आर कंट्रीज which doesn't like this project of China, right? बात समझ में आई? और क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं? बिकॉज चाइना इज समवेयर इन्वेस्टिंग $1 ट्रिलियन टू क्रिएट अ बिग मार्केट फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग, राइट। द इकोनॉमिस्ट के एक एडिटोरियल के हिसाब से सीधे तौर पे, इट इज चाइनीज इकोनॉमिक इन्वेजन टू ग्रोइंग इकोनॉमी एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, राइट। सो बहुत सारी कंट्रीज इसका अपोज कर रही हैं, चाइना उसमें मान नहीं रहा है। अब और एग्रेशन देख लो, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ये डिस्कस करने की जरूरत है क्या? वी हैव डिस्कस दिस लाइक इन नंबर ऑफ टाइम
कि कभी टैरिफ को लेके, कभी ट्रेड बेनिफिट्स को लेके, कभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को डेवलपिंग या डेवलप्ड इकोनॉमीज को लेके, कभी किसी चीज को लेके, कभी करेंसी मैनिपुलेटर बोल के चाइना को अक्यूज किया गया, कभी किसी चीज के लिए लड़ाई कंटिन्यू है, राइट, ये रुक ही नहीं रही है, ठीक। एंड ये सारी चीजें होने के बाद अब इंडिया ने जो इन सारी चीजों में स्टैंड लिया है, right, that becomes why China is somewhere in act of provoking uh, a new low in diplomatic relationship with India, right? क्यों कहना चाहिए ऐसा? क्योंकि इंडिया ने अपने जो स्टेप हैं, जो अपने पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए, अपने व्यूज हैं ऊपर के सारे मुद्दों पर, साउथ चाइना सी हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो, इसे बहुत क्लियर रखा। साउथ चाइना सी में इंडिया ने सीधे तौर पे चाइनीज एग्रेशन को काउंटर किया है एंड आसियान कंट्रीज की जो पर्टिकुलर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन उसको प्रोटेक्ट करने की बात की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंडिया ने क्या किया, अपोज किया। जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम समिट बुलाई लास्ट, उसमें इंडिया एससीओ के समिट में होने के बाद भी फोरम की मीटिंग में नहीं था, बिकॉज द मीटिंग वाज deliberately dedicated to BRI, right? India is part of Quad Group, which is somewhere counter क्या कहना चाहिए of BRI, right? And US China trade war में भी इंडिया ने कभी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का एक सीधा सीधा स्टेप नहीं लिया, and India is somewhere, right, looking US China trade war as a new opportunity, right, for itself, कि किस तरीके से वो आगे चल के इसको क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब को स्टैब्लिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक पॉइंट जो अपन वो हो रहे हैं वो सीधे तौर पे मुझे जल्दी से बताओ, क्या इंडिया अभी किसी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर, मतलब ज्वाइन करने से उसने मना कर दिया था? बहुत न्यूज में था, अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया है, RCEP, रिमेंबर, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, राइट? क्या उसमें चाइना भी था? एंड चाइना के लिए वो नुकसान भी होगा, डेफिनेटली होगा, राइट? सो ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे इंडिया ने चाइनीज काउंटर पार्ट के अगेंस्ट बात की। इंडिया का स्टैंड इंटरनेशनल जो पर्टिकुलर इश्यूज होते हैं उससे बड़ा क्लियर होता है। हम अपन ने पहले भी बात की, मैं आपको दोबारा कहता हूँ, हम किसी के फट्टे में तब तक टांग नहीं रहते जब तक वो हमें बुलाएंगे, बट चाइनीज पार्ट जो है ऐसा नहीं। अच्छा, ये अभी का नहीं है, हिस्टोरिकली भी हमने चाइना के साथ ये चीज की है। जब तिब्बत कैप्चर किया गया, जियांग कैप्चर किया गया 56-59 में, तब भी हमने तिब्बत सपोर्ट किया। हमने दलाई लामा को असाइलम देके घर में बुलाया कि भाई साहब बैठो, यहां से आप एक एक्साइल गवर्नमेंट चलाओ, राइट? एक सोशल बॉर्डर क्रिएट किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। 67 का 65 से लेके 67 के बीच में जो सिक्किम वाला बॉर्डर है, वहां पे जो एग्रेसिव अप्रोच थी वो 75 में फाइनली सिक्किम वाला एरिया कैप्चर करना, 87 में डोकलाम का इशू, उसके बाद जो पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए राजीव गांधी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इन टाइम पे एक पीस ट्रीटी के फॉर्म में हैंडल करना रिलेशनशिप को। फिर सडनली 2017 में डोकलाम में अगेन 73 डेज का फेस ऑफ, राइट? एंड फिर अभी रिसेंटली गालवान है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर है, और बहुत सारी जगह जहां पे ये चीजें हुई। और ये कहीं ना कहीं चाइनीज जो पर्टिकुलर कंटिन्यूटी ऑफ बिहेवियर है ना टुवर्ड इंडिया, ये बताता है। ये कहता है कि चाइना जो है इंडिया को हमेशा से कंपटीशन की तरह देखता आया है, और चाइना डेफिनेटली उन सारी चीजों में जहां पे इंडिया को आगे बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां चाइना काउंटर करता है। फॉर एग्जांपल NSG, न्यूक्लियर सप्लायर को, राइट? क्या हमें मेंबर बन जाना चाहिए था अब तक? डेफिनेटली। उसके लिए वीटो किसने लिया? चाइना ने। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है जहां पे इंडिया जो है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है या किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी कंसर्न के लिए कुछ मुद्दे रखना चाहता है, वीटो लेने काम कौन कर लेता है? चाइना। तिब्बत वाला पार्ट, हम तिब्बत को कहीं ना कहीं एक सोवेरेन स्टेट की तरह देखते हैं, इसलिए इंडिया के अगेंस्ट चाइना का वो बिहेवियर होता है। पैंगोंग सो लद्दाख वाला जो रीजन है, अक्साई चिन वाला रीजन है, वो इशू इसीलिए है क्योंकि हम तिब्बत सपोर्ट करते हैं। बॉर्डर रेगुलेशन, जो हमारे पास बॉर्डर के लॉज हैं, जो हमारे पास डिफाइंड डिमार्केटेड बॉर्डर है, उसको फॉलो ना करना। और अभी के टाइम पे सबसे मेजर इशू जो हो रहा है चाइना को, जिसके कारण
अभी चाइना कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो गया है ड्यूरिंग इवन कोविड पेंडेमिक। हम अपने नेबर्स को फुली सपोर्ट करें। क्या हमने ऑपरेशन संजीवनी के थ्रू मालदीव को बहुत सारी दवाइयां भेजी? क्या हम दुनिया भर में दवाइयां अपनी तरफ से जो बना रहे हैं जो कोविड के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए हो सकती हैं? क्या इंडिया बहुत अच्छे से बीइंग अ ग्लोबल लीडर खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहा है? यस। तो क्या इंडिया के उससे अपना ध्यान हटाने के लिए दूसरी चीजें करना जरूरी है? डेफिनेटली। थिंक अबाउट इट। एक ह्यूमैनिटेरियन थॉट अगर रखा जाए, कोविड पेंडेमिक से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया परेशान है। वी स्टिल डोंट हैव एनी vaccine or medication to kill that particular virus. And during that time, if somebody is thinking about economic aggression, border aggression, and border aggression aisa waisa bhi nahi, border aggression is like act of provoking war, right? So is it kya kehna chahiye, is it the way a global leader acts whether you are a big manufacturing hub or not? बिल्कुल नहीं, राइट? तो जब अपन डिफेंस लेवल पे, जब अपन डिप्लोमेट लेवल पे इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, देन वी रियलाइज कि इंडिया के अगेंस्ट चाइना का, राइट, जो पर्टिकुलर एक्ट है, जो चाइना की बिहेवियर है, वो आज का नहीं है, वो हिस्टोरिकल इवेंट्स से क्या होके आया है, निकल के आया है, राइट? और एक कमिंग टाइम पे चाइना इंडिया को एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मान रहा है, and this aggression, Chinese aggression, right? Whether it is in borders, whether it is in economies, whether it is in manufacturing hub, whether it is in international borders, international seas, ये सब कुछ इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल लीडर, एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, राइट, एक बड़े मार्केट के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। दैट इज व्हाई चाइना इज ऑलवेज अगेंस्ट इंडिया। आर यू क्लियर विद दिस टॉपिक? यस और नो? मुझे अदिति की तरफ से कमेंट अवेटेड है। Definitely, Avanti. Definitely. Right? Okay. So if you are going through good news channels, good newspapers, good websites, you will have a better approach toward any option. अब इमेजिन करो कि जो मैंने बोला वो तुमसे एक इंटरव्यू में पूछा जाए, तो तुम चाइनीज एग्रेशन के अगेंस्ट ये बताओ कि इंद्रदेव का कहर बाढ़ के रूप में चाइना के ऊपर इसलिए बरप रहा है क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट चाइना ने ऐसा किया। क्या इंटरव्यू तुम्हें सीरियस लेगा? तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेगा जो एक लॉजिकल पर्सन होगा। डेफिनेटली, राइट? सो गो थ्रू गुड सोर्सेस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, राइट? तुम्हें मजा आना चाहिए, एक्चुअली मजा आना चाहिए, बिकॉज ये बहुत सारी चीजों में बहुत पर्टिकुलर जो अलग अलग पार्ट है ना, उसमें ये डिस्क्राइब्ड है। अपन थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं, हम जल्दी जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करेंगे, समय अपने पास थोड़ा सा कम है, राइट? ओके, सो क्या आजकल कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स, कुछ पर्टिकुलर सोशल मीडिया पोस्ट तुम्हें ऐसे मिलते हैं जहां इंडिया को एज अ डेमोक्रेसी क्वेश्चन किया जाता है कि क्या हम अभी डेमोक्रेसी है, नहीं है? ये सुनो, या डेफिनेटली, मतलब हमारे पास हमारे हमारे जो पर्टिकुलर, हम वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, एवरीबॉडी हैज राइट टू एक्सप्रेस, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग एक्चुअली जो ग्रीक वर्ड से होती है वो होती है, जिसमें उसका मतलब होता है क्या कहना चाहिए, पीपल। मतलब ये सीधे सीधे तौर पे स्टार्टिंग जो है सी होती है कि पीपल, एंड उसके बाद क्या हुआ, हम बात करते हैं किस पे, वो कन्वर्ट हुआ पावर पे। जो डेमोक्रेसी का शायद सबसे सुप्रीम लीडर अपने इंडिया में हुए हैं, उनमें डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिन्होंने सीधे तौर पे चीज लिखी थी, a form and a method of government whereby revolutionary changes in the economy and social life of people are brought about without bloodshed, right? ये किसका कहानी था, ये किसकी डेफिनेशन थी डेमोक्रेसी को लेके? दैट वाज डॉक्टर अंबेडकर, राइट? बट नाउअडेज जो चीजें चेंज हुई हैं उस पर अपन जब बात करते हैं, तो सबसे पहले ना कुछ चीजों पे चले आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम इस साल के कुछ इंडेक्सेस पे देखें, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम इन द कंट्री डेमोक्रेसी इंडेक्स,
ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, इन सब की अगर बात की जाए ना, तो थोड़ी सी जो पर्टिकुलर अपने पास रैंकिंग है इंडिया की पिछली बारी से, राइट, जो लास्ट रिपोर्ट थी उससे अपनी रैंकिंग माइनर उसमें क्या हुई है, कम हुई है. There was lots of particular different reasons were given. Sometimes social distress, sometimes communal distress, sometimes cultural distress, sometimes political distrust, right? But हमें जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम पंडित नेहरू टू प्रधानमंत्री, अभी करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ तक जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा पर्टिकुलर इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट है, उसको हमने डेफिनेटली बहुत अच्छे से अप्रोच करने की कोशिश की, राइट. भले ही देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनमें से 16 अचीव करने में अभी भी हम काफी दूर है, बट इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं टुवर्ड दोज गोल्स, right, for example Swachh Bharat Abhiyan, for example International Solar Alliance, for example Kusum scheme, for example other different things, they are somewhere great and praised by international institutions to attain those sustainable goals, right. Secondly, जो हमारे साथ एक और बेसिक प्रॉब्लम है कि जब हमारे पास ये रिपोर्ट्स आती हैं, तो ये रिपोर्ट्स जो है, जो इको सोशियो या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के उसमें है, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अवेयरनेस है उनका, दूसरा जो एजुकेशन लेवल है एंड एरिया डिफाइंड एरिया है, वहां पे प्रॉपर डेटा कलेक्शन नहीं हो पाता, प्रॉपर सर्वे नहीं हो पाता. सो जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको वो किया, जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं उसमें जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने पास ऑथेंटिकेशन एंड थोड़ा सा डेटा कलेक्शन की जो मेथड है उस पर हम विश्वास नहीं कर पाते, राइट. सो इफ देयर आर सर्टेन चेंजेस जिसमें वो बात करते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया नीचे गई है, फ्रीडम ऑफ प्रेस में नीचे गई है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में इंडियन सिटीज आर गोइंग डाउन, इस तरीके का अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली उसमें कुछ चीजें ड्रॉबैक भी हैं. अगर मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल है, राइट, एशियन डेवलपमेंट है या दूसरी चीजों की बात करूं, तो इंडिया के जितने भी पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स हैं, राइट, वो सारे के सारे जो हैं वो प्रेज किए जाते हैं, नंबर वन. नंबर टू, जितने भी हमारे पास क्वेश्चनेबल सोशल मीडिया या मीडिया पोस्ट होते हैं, राइट, ये सबके सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होते हैं, यस और नो, राइट. क्या हम उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड कोई बात, कोई नॉलेज, कोई पर्टिकुलर परसेप्शन? नहीं. सो इंडिया एज अ डेमोक्रेसी अगर बात की जाए, जो आज के टाइम पे एक विंग खड़ा हुआ है उस डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक नेचर को क्वेश्चन करने के लिए, उनको अभी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, उनको अभी ज्यादा ग्राउंड लेवल पे डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है, उन्हें अभी ज्यादा ग्राउंड लेवल पे जाके देखने की जरूरत है, राइट. फ्रीडम एंड जो क्या कहना चाहिए पॉलिटिकल थॉट्स से, राइट, अपनी जो लिटररी थॉट्स हैं उनसे, और इन सारी चीजों के बाद फिर बात करने की जरूरत होती है, तब हम इंडिया की डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक नेचर को जो है वो क्या कर पाते हैं, क्वेश्चन कर पाते हैं, राइट. ये बहुत अच्छे से द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, मुझे बड़ा मजा आया था पढ़ के. उन्होंने पूरा का पूरा डेमोक्रेसी का ना, वो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डिमोस एंड कार्थोस से लेके इंडिया को आज किस तरीके से वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसी बोलना चाहिए, इस पे उन्होंने पूरे व्यूज लिखे थे. उन्होंने क्रिटिसाइज किया लेफ्ट विंग को भी, राइट विंग को भी, सेक्युलर्स को भी, और हर एक आइडियोलॉजी को, ये कहते हुए कि नाउ एवरी सिंगल आइडियोलॉजी इज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड एंड दे डोंट बिलीव इन आइडियोलॉजी बट दे आर पॉलिटिकल, राइट. बहुत शानदार आर्टिकल था और पढ़ने में तुम्हें मजा भी आएगा. एवरीबडी गेट दैट कि किस तरीके से जो मेजॉरिटी इंडेक्सेस हैं उसमें क्या कमी है, यस और नो, राइट. Not really, Arya. Actually, the policy making is like spontaneous requirements. कि अगर 20 साल पुरानी पॉलिसी है, अगर उसने अब तक गोल्स अचीव नहीं भी किए, तब भी जो नई रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके लिए हमें नई पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी. क्लियर हो रहा है, राइट. सो मेक श्योर कि वो चीजें रहें. माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से कि आने वाले टाइम पे जो डेमोक्रेसी है दैट विल कन्वर्ट इनटू
they more kursi, right? That is all going to be the one जो आपको कुर्सी या चेयर, वो चेयर किसी की भी हो सकती है, उसके लिए लड़ाई हो सकती है. So whatever the ideologies, political ideologies are saying, right? They don't believe into that because all of them are somewhere influenced for democracy, the literal meaning they more kursi. Clear? आगे बढ़े. Yes, net neutrality. कितने लोगों को नेटवर्क न्यूट्रलिटी के बारे में पता है? Okay, not really. Okay, heard about it. मुझे बताओ, क्या रिसेंटली अभी बहुत सारी कंपनीज जो हैं, राइट, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, उन्होंने फेसबुक में अपने एडवर्टीजमेंट वगैरह वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए अभी के लिए क्या कर दिया, बंद कर दिया. प्रोटेस्ट में है क्या? कोई बताएगा क्यों है वो प्रोटेस्ट में? एनीवन, कम ऑन. ओके, ठीक है, ठीक है. ओके, तुमने टॉपिक समझा, नेट न्यूट्रलिटी वर्सेस हेट स्पीच. पहले जरा नेटवर्क न्यूट्रलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? राइट, चलो. नेटवर्क न्यूट्रलिटी का सीधा मतलब है जो नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, वो किसी के लिए भी बायस्ड नहीं. राइट, सो मैं हूं, मेरा दोस्त है, एंड सम अदर पीपल आर देयर, और उनमें से किसी एक ने एक इंटरनेट पे एक ऐसा पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने एक एक्स कम्युनिटी को दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के लिए क्या किया, जिम्मेदार बताया, रिस्पॉन्सिबल बताया, एंड उसके बाद उन्होंने ये उसमें लिखा कि दिस कम्युनिटी इज नॉट सपोज टू लिव इन दिस वर्ल्ड, वी शुड फिनिश दैट कम्युनिटी. इज इट काइंड ऑफ हेट स्पीच अगेंस्ट अ कम्युनिटी? यस और नो? राइट. सो नेट न्यूट्रलिटी इज समथिंग कि वो उसको एक्सेप्ट करेगी, वो उसको ये नहीं बोलेगी कि हम ये हेट स्पीच हटाएंगे. राइट, नेट न्यूट्रलिटी का सीधा मतलब है वो किसी भी एक चीज के लिए बायस नहीं होंगे. वट एवर यू आर एक्सप्रेसिंग, राइट, वट एवर यू आर राइटिंग, ये सब कुछ एक्सेप्टेबल. अब समझ में आया नेट न्यूट्रलिटी का मतलब? बात क्लियर हुई ना? ओके, नाउ अंडरस्टैंड. फेसबुक से बाकी पर्टिकुलर जो कंपनीज है, वी हैव, ओके, अथर इसी पे तो आ रहे हैं. नाउ द थिंग इज कि when these 300 मल्टीनेशनल कंपनीज, इन्होंने सीधे तौर पे बोला कि आप ऐसे जो पर्टिकुलर स्पीचेस हैं उनको हटाएं, राइट, ये ऐसी पर्टिकुलर पोस्ट, ऐसी पर्टिकुलर लिंक्स जो इस तरीके की हेट स्पीच को स्प्रेड करने के लिए हैं, उनको हटाएं, राइट, सारे के सारे. एंड फेसबुक ऑन द बेसिस ऑफ एंड द प्रिंसिपल ऑफ ए नेट न्यूट्रलिटी, राइट, उन्होंने बोला कि एज एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपीज के नाम से जाने जाते हैं ये, राइट, एंड सोशल मीडिया कोऑपरेशन, हम ये चीज इंटेंशनली नहीं कर सकते, राइट, ये चीज करना हमारे नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है. तो उन्होंने कई चीजें इस तरीके से बोली कि कुछ पोस्ट तो डिलीट हो जाते हैं. रिमेंबर देयर इज अ कॉमेडियन नोन एज कैरी मिनाटी, राइट, और उनका एक वीडियो इस पर्टिकुलर चीज के कारण यूट्यूब से हटवाया गया था क्योंकि उसमें बहुत सारे स्लैंग्स थे. याद है? क्लियर हो रहा है क्या? राइट, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि व्हाई यू आर गेटिंग बायस्ड. अगर तुम्हें किसी चीज में हेट स्पीच लग रहा है तो तुम्हें सारी चीजें हटानी चाहिए. किसी एक ऐसे पर्टिकुलर चीज को हटाने से जो न्यूज में आ गया है या जो लाइमलाइट में आ गया, ये चीज गलत होगी, राइट. अगेन द फेसबुक इज ऑल्सो आर्ग्यूमेंटिंग कि देयर आर सेवरल थिंग्स, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो बहुत ही अलग अलग जगहों पे क्या करते हैं, अपने लेवल पे हेल्प भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिविल राइट मूवमेंट्स हैं, इन सब को सोशल मीडिया जो है वो बहुत तेजी से प्रमोट भी करता है. इफ यू रिमेंबर दैट जैस्मिन रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट वी हैड इन आवर क्लास, राइट, वो अरब स्प्रिंग, जैस्मिन रेवोल्यूशन, इन सब पे एक बहुत मेजर रोल प्ले किया गया है. तो उनका कहना है कि अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया से पॉसिबल है तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी है. तो अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर हेट स्पीच अवेलेबल है तुम्हारे उसमें प्लेटफॉर्म पे, तो तुम्हें उसको हटाना पड़ेगा, तब तक हम एडवर्टीजमेंट नहीं वो करेंगे. द बेसिक क्वेश्चन हियर इज कि इज इट ओके टू बैक नेट न्यूट्रलिटी आफ्टर ऑल दीज थिंग?
or there must be certain rules for net neutrality. राइट उन्होंने सीधे तौर पे अपने आज राज्यसभा टीवी के एक डिबेट में उन्होंने बोला कि नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इन चीजों पे डील करे, हमें समझदार लोग चाहिए, सोशल एक्टिविस्ट चाहिए, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए, जो मिलकर ये बता पाए कि क्या सही गलत तरीके से होगा। राइट, क्लियर है? तुम्हें हेट स्पीच समझनी हो कभी ना, तो कभी फेसबुक पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम में कभी कोई ऐसा पर्टिकुलर पोस्ट देखें जो किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे हो, तो पोस्ट पढ़ो नहीं पढ़ो कोई मतलब नहीं है, डू रीड कमेंट्स। तुम्हें कमेंट्स में समझ में आएगा कि लोगों के अंदर सोशल मीडिया में कितनी नफरत भरी है। राइट, एनी डाउट्स? वेरी गुड, चलो एक मजेदार सेशन खेलते हैं। एवरीबडी इज रेडी फॉर क्विज? पक्का? चलो, क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी whose English compatriot during the freedom movement was? तो मुझे बताओ, इंग्लिश काउंटर पार्ट उन्हें दीन बंधु के नाम से भी, अच्छा दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता था। उनके आगे दीन, जैसे जो दीन बंधु, नो 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 नो, एओ ह्यूम क्या गांधी जी के टाइम पे थे? फिर ओके, ईशान, गुड, गुड, ओके, यस 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 यस, चार्ल्स एंड्रयूज, राइट, इन्हें दीन बंधु एंड्रयूज के नाम से जाना जाता था। ये जो स्टीफन कॉलेज था उसमें प्रोफेसर भी थे और ये बहुत क्लोज थे, रविन्द्रनाथ टैगोर हो या पर्टिकुलर गोपाल कृष्ण गोखले, हु इज पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी हिमसेल्फ, ये उनके बहुत क्लोज थे। और इंग्लिश काउंटर पार्ट में अगर देखा जाए तो गांधी जी के साथ उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। राइट, आई गेस 2 people got the correct answer, yes or no? 2 or 3 people, yes. चले आगे क्वेश्चन पढ़ाएं। ओके, स्वराज इन अ ईयर गांधी जी के किस मूवमेंट का स्लोगन था? जल्दी बताओ। ओके, सी ए सी ए, ओके 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 ओके, करेक्ट आंसर इज नॉन कोऑपरेशन। राइट, जब खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन दोनों के दोनों साथ हुए थे, तो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन जो पर्टिकुलर समिट हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, एंड इन दैट कॉन्फ्रेंस ही सेड स्वराज इन अ ईयर। राइट, ओके, नेक्स्ट पढ़े। ये क्वेश्चन करने में तुम्हें शायद मजा आए। राइट, ये एक्चुअली ह्यूमैनिटीज वालों से मुझे आंसर एक्सपेक्टेड है। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रीथ ऑफ नेशन, ये किसने बोला था? ओके, ए बी ए, okay, majority of a crowd is going for A, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. The correct answer is B. Am I audible and visible? Okay, yes yes yes. Okay, so Arvindo Ghosh, one of the revolutionary monk कह सकते हो, right? इन्होंने ये चीज बोली थी कि पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो लाइफ ब्रीथ है एक नेशन का। राइट, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद तुमसे हो जाए। हु इज नोन एज गुरुदेव? बहुत इजी क्वेश्चन है। Okay, I guess 50% student got the answer. Right, Ishan, Gauri, Pratha, Yogesh, Shivani, Arya, Akansha and Srini. Yes, जब अपन बात करते हैं किसकी, गुरुदेव की, तो हम बात करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की। इन्हें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर बुलाया जाता था, रिमेंबर?
right? He is the first Asian to become a Nobel laureate, right? और गीतांजलि का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था उसके लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑफिशियल हिस्ट्री किसने लिखी? ये क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ओके, ए डी ए सी सी। ओके, सो आई गेस दिस इज ओनली क्वेश्चन जिसमें सिर्फ 2 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, राइट? दैट इज पट्टाभी सीतारमैया। डॉक्टर सीतारमैया जो होते हैं, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑफिशियल जो पर्टिकुलर हिस्ट्री है, कह सकते हो, उसको पूरा का पूरा उन्होंने लिखा है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, गांधी एंड गांधीज्म इस इनकी एक और कृति है जिसे तुम्हें पढ़ना चाहिए क्लैट के बाद, एग्जाम्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बामियान ऑफ अफगानिस्तान इज फेमस फॉर। अभी रिसेंटली मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तालिबान के थ्रू, राइट, कुछ डैमेजेस किए गए हैं, राइट, कुछ चीजों पे। सो दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। बामियान ऑफ अफगानिस्तान। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड। Okay, yes, I guess this is the question. I guess 50-60% student got the correct answer. The correct answer is Buddha statue. The only thing you have to understand, कल्चर डेवलपमेंट के पार्ट में अगर देखा जाए तो जो वो पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ना, वहां पे बहुत सारे रिलीजन जो थे वो अवेलेबल थे। और इवन अफगानिस्तान, मॉडर्न डे अफगानिस्तान, पुराना जो पर्टिकुलर एरिया था हिंदू कुश वाला, वहां पे बड़ा एक बहुत लार्ज स्टैचूज ऑफ बुद्धा थे, जिसे रिसेंट तालिबान एक्रेशन ने क्या किया, डैमेज किया, राइट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वी आर हैविंग सम मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? कितने लोगों के पास नोबेल प्राइज एज वेल एज भारत रत्न है? यस, गुड गुड। सो मदर टेरेसा हो सकती हैं, मैं बोलता जाता हूँ, राइट? नेल्सन मंडेला हो सकते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन हो सकते हैं, और एक कोई बचा हुआ है, जल्दी बताओ। यस, करेक्ट आंसर इज 4। देयर आर 4 पीपल। चौथे वाले को बिल्कुल आप अपनी तरफ से वो करेंगे कि इसको केमिस्ट्री में कुछ नोबेल प्राइज ओवर प्राइज मिला है, फिर उसके बाद कुछ भारत रत्न मिला है, राइट? ये जरूरी चीजें हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। ओके, कितने लोगों को पता है कि अर्थ जो है वो कंप्लीट स्फेयर नहीं है? राइट? अर्थ का जो इक्वेटोरियल डायमीटर है और जो पोलर डायमीटर है, उसमें डिफरेंस है। इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो ज्यादा है एंड पोलर डायमीटर जो है वो कम है, राइट? यस, सो अपना क्वेश्चन ये है कि कितनी किलोमीटर का डिफरेंस है? ओके ओके ओके, गुड। ईशान, यू गॉट द करेक्ट आंसर। गौरी, उदित, वेरी गुड। Shreni, very good. Arya, exactly. That 43 kilometer, right, is the difference between polar diameter and equatorial diameter, right? Approximate 21.4 कुछ something होता है, जो रेडियस का टर्म होता है, तो 42.89 के बीच में पहुंच जाता है, तो हम उसे 43 किलोमीटर कंसिडर कर ही लेते हैं। ये ज्योग्राफी के बाद कुछ अपन और डिफरेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, थोड़े से अपन दूसरे उसमें आ जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स वाले केसेस में, राइट? तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। वेस्ट साइड किसका वो है? वेस्ट साइड इज द वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल ग्रुप? कितने लोग वेस्ट साइड विजिट करके आए हैं? बाहर लगा रहता है क्या? यस 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 यस, अवंती, या ये तो है।
ये बेटा तुम सही बोल रहे हो। यस, आई गेस मेजॉरिटी स्टूडेंट गॉट द आंसर, दैट इज टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ना थोड़ा सा मजे रहना है, कितने अपने पास होटल मैनेजमेंट वाले हैं? आर्या, ओके, ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट गवर्नमेंट ओन 5 स्टार होटल चेन इन इंडिया? बताओ। ओके, ए बी, ए बी, बोथ ए एंड बी, ए बी, ए एंड बी, डी, ए, ओके, बी, ताजमहल पैलेस। द करेक्ट, अच्छा ताजमहल पैलेस तुम्हें बता दूं टाटा के अंडर है ना? राइट, करेक्ट आंसर इज अशोका होटल। राइट, अशोका होटल जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट ओन 5 स्टार चेन है, होटल चेन है, ध्यान रखना। ठीक है, राइट, लेट्स गो टू वन मोर क्वेश्चन, शायद तुम्हें मजा आए। लार्जेस्ट होटल चेन इन द वर्ल्ड? ताज ग्रुप, मैरियट ग्रुप, ओबेरॉय ग्रुप, अशोका ग्रुप, इन सब के बारे में नाम तो सुना ही होगा ना? ओके 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 ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, द करेक्ट आंसर इज मैरियट ग्रुप। मैरियट ग्रुप इंडिया का एज वेल एज वर्ल्ड का सबसे बड़ा होटल चेन, ध्यान रखना। राइट, सो इन दोनों के आंसर सेम होंगे। Last question for today, I guess. Find the odd one out. There are four particular hotels I have written. Neelambag Palace Hotel Bhavnagar, the Raj Palace Jaipur, the Taj Mahal Palace Mumbai, the Lakshmi Vilas Palace in Udaipur. Right. तुम्हें बताना है कि इसमें ऑड कौन सा है। चलो, प्रथा, योगेश, अवंती, you guys are saying C, तो मुझे बताओ कि क्यों। ओके, यस, तुम लोगों ने थोड़े थोड़े कुछ तो लॉजिक लगा लिए। द बेसिक थिंग इज कि देयर आर हेरिटेज होटल्स, राइट। यस, जैसे मेरे इमेजिन करो कि मैं पहले राजा था एंड मेरे पास एक बड़ा पैलेस है और मैंने उस पैलेस को क्या कर दिया, एक 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया कि लोग आए यहाँ रुके, वो राज घराने वाली पर्टिकुलर जो लाइफस्टाइल है वो जिए और चले जाएं, राइट। सो ये जो होते हैं, जो ऐसे होटल्स हैं, उन्हें हम हेरिटेज होटल कहते हैं। जबकि ताजमहल पैलेस मुंबई ये हेरिटेज होटल नहीं, ये बनाया ही होटल गया था। आई गेस 1901 इज द ईयर जब वो चालू हुआ था। 1903 में दे ओपन द गेट फॉर द गेस्ट, राइट। और कहानी भी बड़ी क्रिटिकल बताई जाती है कि टाटा को जो है होटल में नहीं आने दिया गया था, तो उन्होंने अपनी 5 स्टार होटल खोल लिया, अब मैं अपने में ही रहूंगा, माँ होटल माँ रूल्स वाला केस हो जाएगा, राइट। सो डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन हेरिटेज होटल एंड होटल्स जो होते हैं? Okay, last question. Which of the following building is said to be the first 7-star rated hotel in the world? ओहो, सी 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 की एकदम से झड़ी लग गई है, राइट। ओके ओके ओके, अच्छा, बुर्ज अल अरब। रिमेंबर वो जब भी दुबई वाला एक एड आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, तो उसमें एक होटल होता है जो इस तरीके से होता है कि वो शिप बोट जैसा है, याद है? दैट इज बुर्ज अल अरब। और न्यूज़पेपर्स में उसका नाम आया था एज अ फर्स्ट 7 स्टार होटल। बट जो ऑफिशियल रेटिंग 7 स्टार जो पहले होटल को मिली है वो है गैलेरिया, ये मिलान में है, इटली में, राइट। तो ये थोड़ा सा चीजें क्लियर रखना कि न्यूज़पेपर वालों ने बुर्ज अल अरब को पहला 7 स्टार घोषित किया, जो ऑफिशियल रेटिंग है दैट इज व्हाट, गैलेरिया मिलान, इटली, है ना। इसका आंसर आई गेस कोई नहीं दे पाया था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गैलेरिया जो है वो 5 स्टार होटल बनेगा, 7 स्टार होगा। क्लियर? एनी डाउट्स? I hope you guys enjoyed it. अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ें, अच्छी न्यूज़ मीडिया हाउसेस
कि न्यूज़ देखें, अच्छी वेबसाइट्स रेफर करके पढ़ाई करें. Do not go for any random stuff to study, right? And be a better person by reading. अवंती मैंने उससे बोला था, बट उसकी अभी एक्चुअली जो टाइमिंग अभी अपनी चल रही है ना, राइट, उसमें उसका एक और दूसरा पर्टिकुलर क्लास था जो पहले से उसने प्लान कर लिया था, राइट. मैं अपने दोस्त को जल्दी बुलाऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, इन प्रोसेस उदित, एक्चुअली इन प्रोसेस. ठीक, तो चलो नेक्स्ट उसमें मिलते हैं. मैं अगेन सर को मैं होस्ट बना देता हूं. Yeah, thank you so much, Shubham sir, for giving an insight session for to our students regarding the newspaper reading. Now we are going to start with the another session, that is strategies to crack any examination. So with us, Aditi ma'am is there. But before we start with Aditi ma'am, our director sir, Rishi Chaurasia sir, is going to help you out and is going to tell you that how we at Vikalp Education learn things from observation. Okay, so just giving you a brief summary about Rishi Chaurasia sir. He's a management graduate. He did his MBA in finance from Mumbai University. He is basically a trainer in maximum management colleges. He started Vikalp Education in 2013 in Nagpur. So Rishi Chaurasia sir is basically a aptitude trainer taking quant and current affairs at Vikalp Education. We welcome you, sir. Thank you so much, ma'am. And my It's over slide to you, sir. Is my slide visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So shall we proceed? I have, as madam has said about the learning from observation, I have mentioned a question to you. Can you just see this question? Yes, sir. So can you try this? Okay, before you try, let us just listen a video. सब एक दूसरे से हाथ मिलाओ और अपना अपना नाम बताओ. जल्दी करो, सिर्फ 10 सेकंड है तुम्हारे पास. सब एक दूसरे से हाथ मिलाओ और अपना अपना नाम बताओ. जल्दी करो, सिर्फ 10 सेकंड है तुम्हारे पास. हाँ, स्टॉप. अब बताओ कितना हैंडशेक हो. सर 30 गुना 30 900 होगा सर. गलत. सर 870 30 गुना 29. वॉइस आ रहा है. So did you listen? Did you listen the video? Am I audible? Yes, sir. Yeah. So I hope, did you listen the video? Yes, sir. Any possible answer? I started getting answers like Udit, Avanti has given, but I hope you got it. Already Hrithik Roshan has said you are wrong. See, the beauty of maths, specifically the logical maths and these type of question is, you can observe these questions. Just try to understand. In this movie, Hrithik Roshan is trying to teach 30 students. We have seen this movie, Mr. Anand Kumar of Bihar, Super 30, all about, at least आपने उसका ट्रेलर जरूर देखा होगा, भले मूवी ना देखा हो, but you got the point here कि Mr. Anand Kumar, what he was trying to do with the candidates.
So mathematically, if you can plan, this formula you need to use for solving this. And I'm pretty sure ये फॉर्मूला देखकर बहुत ज्यादा हम लोगों के माइंड में एक टेंशन क्रिएट हुआ होगा कि यार ये कैसे होगा. नाउ सिंपली अगर इफ यू विल ऑब्जर्व, नो बेटा तेजस्विनी रॉन्ग आंसर है, अवंती रॉन्ग है, ठीक है. 435 you have mentioned, let it be. Yes, let me just show you. मैं आंसर आपको बताता हूं, but the most important point here is कैसे हम इसको प्लान कर सकते थे, कैसे सॉल्व कर सकते थे. I am giving you a trick of solving these type of question. Will take not more than 2-3 minutes of it, and then Aditi ma'am is there, so she can continue after that. See, in these type of question where handshakes are required, you don't need to use this formula. You can, this is first method of solving it, where we can use the NCR formula. Here, if you know the basic maths, the answer can be represented as 30C2. So where out of 30 candidates, I need to select any 2 candidates, so I will get an answer. But I can understand this is bit something which is I personally feel starting में अपने को समझना बहुत difficult है. तो अभी इस point को हम लोग नहीं लेके जा रहे हैं. Let us go for by the observation. Observation says is first person will shake hand with how many candidates? Can I say it shake hand with 29 other candidates? The first candidate or each candidate you can say will have a 29 handshakes. Each candidate. But यही सबसे बड़ा mistake है कि पहले का जब handshake हुआ है 29 के साथ, तो अगर अब दूसरा handshake करने जाएगा तो second candidates के लिए कितने नए handshakes होंगे? Can anybody tell me how many handshakes? 28. Yes. This is what the concept is. Here, second candidate will have to do 28 next handshakes because first handshake उसके साथ already हो चुका है. Third candidate will do how many handshakes? 27 new handshakes. Fantastic. So the beauty of this question is you can simply go forward like this only, and you can identify your answer will always be 29, 28, 27 करते हुए आपको last candidate तक जाओगे तो उसका already handshake हो चुका होगा. So can I say ये पूरे का summation होगा. हम अगर इसको solve करने जाएं तो answer always होगा आपका summation of n-1. So what is summation of n-1? N here is the number of candidate which is 30. So your answer is 30 summation of 30 minus 1. Now tell me 30 minus 1 समेशन है तो समेशन ऑफ 29 हमको करना है. अगर आप बचपन से ये फॉर्मूला देखें समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर का, दैट फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n into n plus 1 by 2. तो अगर if I will keep a value of 29, this will be 30 and that to be divided by 2, you will get your answer with that. ठीक है. Now अगर मुझे ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है और ये फॉर्मूले में भी नहीं जाना है, I am giving you another method of adding it. Basically मुझे करना क्या है, summation of 1 plus 2 plus 3 plus 4 करते 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 I have to add till 29. This is what we need to do. Now what we can do is this, where we can apply a concept called average, where बहुत बेसिक सी बात है, ये आपको बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल होगा अगर आप इसको करेंगे. Let us take a try on it. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Can anybody tell me what is the summation of 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5? 15. Yes, it is 15, right? Now this 15 can be identified by just observing. Don't need to apply any formula. Yes, you don't need to put forward anything. Just observe करिएगा. ठीक है? Now I'm giving you the observation here. दो चीजें निकालना है आपको. इन पूरी टर्म्स का एवरेज, इन पूरी टर्म्स का एवरेज. एवरेज विल बी ऑलवेज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का एवरेज. तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का एवरेज कितना है? याद रखिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का एवरेज कितना है? 1 plus 5 divided by 2. तो your average will be 3 multiplied with number of terms. तो कितनी number of terms है यहाँ पर? 5. तो 3 into 5. So whenever you are adding any 5 and natural number, that can be done in simple way. Identify average. Average is first term, last term.
and then multiply with the number of terms. Now, same logic, can I apply in this also? Yes or no? So same logic I can apply for this. How many handshakes? So handshakes will be as simple as 1 plus 29 divided by 2. What is 1 plus 29 divided by 2? What is 1 plus 29 divided by 2? Come on. 15. 15. Perfect. Sir, I have one doubt. Just a second, beta. Just a second. Let me just complete it. Yes, So sir. 1 plus 29 is what? 30. 30 divided by 2 is how much? 15. And that to be number of terms. Kitni number of terms hai? 99. 29 is the number of terms. So you just need to multiply this. So what is the answer? 15 into 29. Come on. 635. No, 435. So 29 tens are 290 and 29 का half किया तो मेरे पास हो जाएगा 145, right? This is 5, 9 plus 4, 13, and this is. So the answer will be 435. So there will be 435 unique handshakes between 30 people in a classroom. So if let's say in this classroom at present, total 34 candidates are there. I need to go for 34 candidates. So I just need to do 34 minus 1. 34 minus 1, which is what? 33. The summation of 33. So I will have whatever be summation of 33, we will get an answer. So I don't need to apply any formula. This basically a basic understanding जो आपने बचपन में पढ़ा है एवरेज का, यहाँ पर भी जो मैंने आपको अप्लाई किया, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने ये देखा कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे, एंड उसमें से बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि नंबर ऑफ हैंडशेक्स क्या होंगे. इफ यू विल गो विद दिस विल आल्सो गिव यू द सेम आंसर, राइट? यस, एनी क्वेरी, एनी डाउट? Isn't it wonderful? Yes, come on. Yes or no? Perfect. So I hope you got the point here. Basically the point, what is the point basically I'm trying to convey? Now the best part is, if I will ask you, IPL में अगर या फिर आप वर्ल्ड कप में कितने नंबर ऑफ मैचेस हुए थे, can I relate this thing with the same concept? Let's say last year जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, उस वर्ल्ड कप में आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए थे. Is it similar to the previous? Yes. It can be. Yes, they are perfectly similar. So the best part is you can observe things. You don't need to remember formulas. अगर आपको वर्ल्ड कप के मैचेस निकालना है, सेम चीज ऐसी होने वाला है. फर्स्ट टीम 9 मैचेस खेलेगा, सेकंड टीम 8 और 9 मैचेस खेलेगा, थर्ड टीम 7 खेलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो 9 plus 8 plus 7 या फिर summation of n minus 1. So the same answer you can identify. So that is what in the movie Hrithik Roshan was trying to convey. कि ऑब्जर्व कीजिए, एंड ट्रस्ट मी योर ऑब्जर्वेशन स्किल कैन बी इम्प्रूव. अगर हम लोग इस तरीके से लर्न करेंगे, बहुत हद तक बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हम लोग ट्राई करते रहते हैं. ईच एंड एवरी सेक्शन आई विल ट्राई कि मैं आपको इन सब तरीके से ऑब्जर्व कर पाऊं. एवरीबॉडी, आई होप यू अंडरस्टूड इट. एनी क्वेरी? थैंक यू सो मच. Aditi ma'am will carry forward from there here onwards. Am I audible and visible to you? आपका वॉइस थोड़ा सा लो है. Okay, I'll just try to. So Aditi Singh is basically from NUJS Kolkata, and she is our critical reasoning faculty, and as well as she is guiding our candidates how to prepare for the different exams, and she herself is a topper. One thing what we have done is we have not asked for any guest faculty. Whatever the faculties we are calling, most of the faculties are teaching in our institute itself. So this is the way you can relate, where we are trying ourselves that we are not calling person for only one time and that person is like not coming for the second time. So this is what the basic thing Vikalp is providing. So thank you so much, Aditi ma'am, for giving us a time once again, and please go ahead with it. And I will be hosting this session. I will be just clicking the slides, so you just tell me just next. Okay, sure. Thank you. Thank you so much, sir, for the warm introduction. Good afternoon, everyone, and
I hope you all are doing great in these tough times. Since we are already facing a huge problem with Corona, we are here to give you a model, a approach, a strategy that will help you to clear all the types of competitive exams that you would be sitting in the next few months. So, first things first, what are the various career options that you can opt after your 12th? Right. There was a time you would have heard from your parents as well, जब केवल 2 स्ट्रीम्स पे फोकस किया जाता था. एक अच्छा करियर सिर्फ 2 स्ट्रीम को ही माना जाता था. That was NEET and IIT. But is it the time same now? No, it isn't. Why? You would have seen there are n number of engineering colleges. Every year, thousands of students pass from that colleges. But are there enough number of jobs and vacancies available for them? No. What about if the student has interest in some other field? For example, hotel management, for example, journalism, for example, advocacy, or if you want to go in judiciary, what then? With the passage of time, we have seen a great evolution in the exam patterns as well. Now, after 12th, we don't just have two major examinations, that is NEET and IIT, but now we have so many vast number of examinations. For example, if you want to choose a management category, then you can opt so many exams like hotel management exams that are carried forward. And then you have IPM, you have BBA, you have a lot number of options in front of you. For example, if you want to make career in law, then you also have options to study from one of the best institutions of law in the India, right? You can be a part of national law universities through two of the major exams, that is CLAT and ALET. Through CLAT, you enter out, I guess, 21 national law universities, and through ALET, you get National Law University, Delhi. So these are the various examinations that you would have seen in various advertisements, in the internet, in newspapers, everywhere. Even government is emphasizing why not to choose only two options, that is NEET and IIT, but also go for these type of examinations because these institutes are highly well profiled. You have n number of options after completing the courses, after completing your undergraduation, after completing your post graduations from these institutions. So in the course of time, I would be dealing how you can clear all these examinations. So kindly change the slide. When should a student start preparing for these exams? This was the question which I particularly faced huge problem with. Being from a small town, I never knew when is the best time to start for your preparation for any sort of examinations, not just CLAT or ALET, but also for other competitive examinations. So there is a solution to it. I think there are various students sitting in front of me. I could see their names. They may be from 10th, 11th, or 12th. I think the sooner you start, the better the outcome will be for you, right? For example, if a student is in 10th standard or 11th standard, if you make it clear that what field you are wishing to go, you can start your preparations from there itself, right? There is no fixed time that if you are in 12th or if you are in 11th, then only you should start a preparation. Even if you are in 10th standard, why not to start then? If you start then, you have 3 years in front of you, right? Because I feel, even if you are in 12th, most important thing is you shouldn't feel on the day of your competitive exams
that you haven't prepared enough. You should always feel that हमने जितना भी हमें टाइम मिला था, हमने उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया है, हमने एक भी टाइम वेस्ट नहीं किया है, ठीक है? चाहे आप 10th से स्टार्ट करो, चाहे 11th से स्टार्ट करो, चाहे 12th से स्टार्ट करो, इट डजंट मैटर, ठीक है? जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे, आपको उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में, ठीक है? अपने कोर्सेज को और ज़्यादा नर्चर करने में। लेकिन never feel one thing, that you are too late for preparing any exam. Is it clear? The next thing that is important to you is what stream you should go for, right? If you have passed your 10th standard, you would be struggling to choose the stream. For example, if you want to go in, you want to sit for IPM examinations or for CLAT examination or any other sort of national entrance examinations, you would be wondering कि अब हम कौन सी stream लें? Is it should be art, or is it should be commerce or science background? What is best for me? Here, I would suggest go as per your interest. There is no foundation in any examination that would stand as a hurdle, that would hamper your preparation, that would stand as a hurdle to for you to enter in any of the top institutions. ठीक है? कॉमर्स में इंटरेस्ट है, कॉमर्स ले लो। मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स ले लो। ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट है, ह्यूमैनिटीज ले लो। ठीक है? ये बात बिल्कुल ही आपके आने वाले सालों पे, आपके आने वाले कॉलेज के ईयर्स में ये आपको इम्पैक्ट नहीं करने वाली है। पर्सनली आई वाज अ मैथ स्टूडेंट, बट नाउ आई एम परसुइंग BA LLB ऑनर्स. I'm studying subjects of commerce, for example, corporate law, ठीक है, economics and various other subjects. But कोई दिक्कत नहीं होती. आगे जाके it's very easy to deal with each and every subject if you do every subject with dedication and motivation. Secondly, if you are interested in arts subject, then you can also go for arts and study political science, geography, history, and various other subjects that humanities has to offer for. ठीक है? After getting into top-notch national university, you are not just given one option, that is BA LLB honors. These are 5 years integrated programs which offer you BBA LLB honors, BA LLB honors, BSc LLB honors, and so on. So whatever subject you choose, you are good to go. So start the sooner, the time you decide what you are going for. So please change. Now, the most important question is how to prepare. ठीक है? आपने देखा होगा सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें एक पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है? अलग अलग एग्जाम्स अलग अलग सिलेबस रखते हैं, पर सारे एग्जामिनेशंस में एक पर्टिकुलर चीज कॉमन होती है, वो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है? चाहे वो IPM एग्जाम हो जिसमें 2 सेक्शंस आते हैं, एक लैंग्वेज, दूसरा आपका मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपका वो मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन इंक्लूड करता है, ठीक है? लैंग्वेज सेक्शन जो होता है वो पर्टिकुलरली सिर्फ वोकैबुलरी पे आपका डिपेंड नहीं करता, वो आपके क्लोज एक्सरसाइजेस पे भी टेस्ट करता है, जिसमें आप ग्रामर के बारे में जानते हैं, ठीक है? आपको ग्रामर से अच्छे से अकस्टम्ड होना है, आपको वोकैबुलरी अच्छे से जानना है. अब इसके लिए फॉर एग्जांपल जो भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस हैं, उसमें अलग-अलग जैसा सिलेबस है. आपको क्या करना है, एक जगह सिलेबस लिखना है, ठीक है? ब्रॉड टर्म्स में सिलेबस लिखना है कि ये फॉर एग्जांपल क्लैट में ये 5 सेक्शंस हैं, लॉजिकल, जीके, लीगल, इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है? आपको उस पर्टिकुलर ईयर का सिलेबस देखना है कि मैथ्स में क्या एकदम 10th लेवल की मैथ्स आ रही है या डेटा इंटरप्रिटेशन आ रहा है, ठीक है? फॉर पर्टिकुलर दिस ईयर डेटा इंटरप्रिटेशन हैज बीन द मेन फोकस ऑफ क्लैट कंसोर्शियम, ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग में क्या आ रहा है,
क्या आपके ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या क्रिटिकल रीजनिंग पे ज्यादा फोकस है। ऐसे आपको 5 ब्रॉडर कैटेगरीज में उसको डिवाइड करना है। इन माय ओपिनियन द बेस्ट थिंग यू शुड गो हाउ टू प्रिपेयर इज, हर दिन हर सब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा टाइम दें इनिशियल स्टेजेस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गिव 45 मिनट्स टू जीके पर डे, आप करंट अफेयर्स एक पर्टिकुलर सोर्स से पढ़ते हैं, ठीक है, तो दैट वुड बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। जीके सेक्शन में या करंट अफेयर सेक्शन में हर दिन आप एक सोर्स लें, आप उससे पूरा अपना पर डे का जीके पढ़ें, उससे सेल्फ नोट्स बनाएं कि लास्ट दिन पे आपको ये नहीं करना पड़े कि आप पूरे साल का जीके जो आपने जिस सोर्स से पढ़ा है आपको वो स्क्रॉल डाउन करना पड़े, आपको न्यूज़ ढूंढनी पड़े। आप अगर सेल्फ नोट्स बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे है, ठीक है। आपको क्लिक हो जाएगा, आप आंख बंद करके सोचेंगे, आपको क्लिक हो जाएगा कि कहाँ पे हमने कौन सा टॉपिक लिखा था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बजट के बारे में कहीं पे लिखे हैं तो हमें पता होगा कि हमने यहाँ पे बजट के बारे में लिखा है, हम सीधे उसी पेज पे जाके चेक कर सकते हैं कि बजट के बारे में हमने क्या लिखा था, उसमें करंट अपडेट्स क्या हैं। फॉर पर्टिकुलरली जिस एग्जाम्स में जीके का बहुत ज्यादा फोकस होता है, आई वुड से न्यूज़पेपर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड, ठीक है। पर्टिकुलरली उसका एडिटोरियल सेक्शन जिसमें आपको सिर्फ जीके नहीं कवर होता बट ऑल्सो आपका इंग्लिश का एक पोर्शन, मेजर पोर्शन कवर हो जाता है, दैट इज रीडिंग कैपेसिटी। जितना ज्यादा आप हेवी वर्ड्स के साथ एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ेंगे या द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज समझ आएगी कि जैसे आप पढ़ रहे हैं पहले के कुछ दिनों में ऐसा होगा कि आपको वर्ड्स नहीं समझ आ रहे हैं, वर्ड्स बहुत हेवी लग रहे हैं, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आपको समझने में दिक्कत आ रही है। लेकिन जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कीप रीडिंग ऑन दोज एडिटोरियल्स यू विल रियलाइज, पहला आपकी स्पीड बढ़ी है, दूसरा आपको वोकैबुलरी समझ आने लगी है, ठीक है। बेस्ट चीज आप न्यूज़पेपर लिए, चाहे ऑनलाइन मोड में लिए या ऑफलाइन मोड में लिए, जो भी वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है उसको आप हाईलाइट कर दें, ठीक है। एक नोटबुक साथ में रखें, हाईलाइट किए हुए वर्ड्स को वहां पे लिखते जाएं। जैसे ही आपका पूरा एडिटोरियल आपने पढ़ लिया हो वो सारे हाईलाइटेड वर्ड्स के आप मीनिंग ढूंढ लें, ठीक है। दिस वाज द पर्टिकुलर वे आई पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर माय प्रिपरेशन because I wasn't very versed with English language. My first language was Hindi, so I was more comfortable with that. So to grasp, to learn vocabulary section, I used this trick. I used to write n number of words that I found in a particular editorial and wrote down its meaning side by side. After writing its meaning, when I went back to those editorials, I realized कि अब ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है वो एडिटोरियल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपका वो जीके वाला सेक्शन आपको रिवाइज हो गया, आपने जो भी पढ़ा था वो आपको रिवाइज हो गया, प्लस अब आपको पर डे नई मीनिंग समझ आने लगी, नई वोकैबुलरी आपके ब्रेन में फिट होने लगी, ठीक है। सेकेंडली स्टैटिक जीके अगर किसी एग्जाम में आता है तो देयर आर वेरियस बुक्स, देयर आर मटेरियल्स दैट यू वुड बी प्रोवाइडेड बाय सर एंड मैम हियर, जिसके द्वारा आप अपना स्टैटिक जीके डेवलप कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट स्टैटिक जीके इज इट इज स्टैटिक, इट वोंट चेंज। तो अगर आपने एक बार एंशियंट इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री अगर आपने पढ़ ली, आपने याद कर ली, तो इट डजंट मैटर आपका एग्जाम कब होने वाला है, आपका वो स्टैटिक जीके आपके बैक ऑफ द माइंड में वो स्टोर रहेगा, वो आपको याद रहेगा। तो ये बात रही जीके की। इंग्लिश का जैसे मैंने कहा ग्रामर सेक्शन है, सो ग्रामर सेक्शन तो आप साइड बाय साइड कहीं ना कहीं से आप पढ़ते रहेंगे। यहाँ कोचिंग में मैम बहुत अच्छे से क्लियर करती हैं, तो पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव सीन हर वीडियोस। सो सारे ग्रामर सेक्शंस आपको इतने सिंपलर टर्म्स में बता दिए जाते हैं कि आपको डाउट नहीं होता है। स्कूल्स में क्या होता है कि ग्रामर सेक्शन की कोई अलग से क्लास नहीं होती है, लिटरेचर की क्लास होती है, उसी में हम जो समझ सकते हैं अपने हिसाब से वो समझते हैं, ठीक है। ग्रामर सेक्शन आप सीखते हैं, उसको क्लोज एक्सरसाइजेस या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस में आप
फिल करने की कोशिश करते हैं कि कैसे टेंसेस यूज करना है, कैसे वर्ब एग्रीमेंट आपको देखना है, कैसे आपको एक्टिव पैसिव वॉइसेस देखना है। वोकैबुलरी के लिए एक जो दूसरी ट्रिक थी अपार्ट फ्रॉम दिस एडिटोरियल थिंग दैट आई यूज्ड वाज निमोनिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ alacrity? ALACRITY. Anyone in the chat box, what is the meaning of alacrity? Okay, so I will tell you how to use mnemonics, particularly English vocabulary, for any examinations. Alacrity किसके जैसे साउंड कर रहा है? It sounds more like electricity. ठीक है, alacrity, electricity बहुत हद तक सिमिलर साउंड कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अगर अपने अंदर है, मतलब अपन में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, अपन में बहुत ज्यादा उत्सुकता है, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए अगर अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो अपन वो काम को बहुत मन से करेंगे। ठीक है, आप ऐसे चीजों को लिंक करते जाओ, और एलैक्रिटी का मीनिंग यहाँ पे हो गया विलिंगनेस। इज इट क्लियर कि कैसे आप एक वर्ड को अपने जनरल लाइफ से रिलेट करके आप उसका मीनिंग याद कर सकते हैं। अब आई डोंट थिंक कि एलैक्रिटी का मीनिंग आपको कभी भी भूलेगा। एलैक्रिटी को हमने लिंक किया इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से लिंक करने के बाद हमने समझा अगर हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी है तो हम किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड रहेंगे, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, और उसी चीज की मीनिंग हो गई विलिंगनेस टू डू एनीथिंग। ठीक है, हाई विलिंगनेस टू डू एनीथिंग। सो इन दिस वे टू थिंग्स, ग्रामर सेक्शन जो आप with practice and with learning the concepts you would be mastering that, and for vocabulary since there are huge number of terms, तो उसके लिए एक एडिटोरियल वाली अप्रोच प्लस दूसरी निमोनिक्स का यूज, कि आप अपने रियल लाइफ से उसको यूज करते जाएं। सेकेंड वर्ड, अगर आपको हिंदी निमोनिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, एक वर्ड होता है अबिस्मल। ठीक है, अबिस्मल, ABYSSMAL। ठीक है, अबिस्मल को अब ऐसे समझना, 20 मील। ठीक है, 20 मील अगर अपन नीचे जाते हैं तो वो बहुत नीचे हो जाएगा। ठीक है, अबिस्मल अगर 20 मील अपन नीचे जाते हैं तो वो बहुत नीचे हो जाएगा, और जब वो बहुत नीचे हो जाएगा मतलब हम इसको कैसे समझ सकते हैं, बहुत नीचे का गिरा हुआ। अब अबिस्मल वो चीज हो गई जो बहुत ही ज्यादा गिरे हुए टर्म्स में है। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी अपन नहीं मार रहे हैं, अपन उसको बहुत ही नेगेटिव अप्रोच से देख रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही गिरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको हिंदी निमोनिक्स से भी समझ सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर कि इंग्लिश सेक्शन प्लस जीके सेक्शन कैसे डील करना है। कमिंग ऑन टू मैथ्स सेक्शन, मैथ्स अगर डीआई सेक्शन है तो प्रैक्टिस के साथ आपको सीखना पड़ेगा। अगर बाकी कोई चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क, ठीक है, ऐसी सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक से की जा सकती हैं, एंड दैट इज द की टू सक्सेस। अगर कोई चीज आप शॉर्टेस्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कर लेते हैं तो वहां पे आपको दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर एक एज मिलेगी। ठीक है, हो सकता है एक स्टूडेंट टाइम एंड वर्क को प्रॉपर थ्योरी लिख रहा हो, ठीक है, कि 20 वर्कर्स इस काम को 20 दिन में करते हैं, 10 वर्कर्स इस काम को इतने दिन में करते हैं, और वहीं पे आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला पता है और उस शॉर्ट फॉर्मूले से आप वो आंसर सीधे निकाल रहे हैं, आप नंबर्स देख रहे हैं और आंसर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक प्लस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करे रहेंगे आपको उतना ज्यादा हेल्प मिलेगी। कमिंग ऑन टू लॉजिकल और क्रिटिकल पोर्शन, इसमें तो बस एक ही अप्रोच है, वो है प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको एक एज मिलती जाएगी। लॉजिकल में यही एक चीज होती है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत टफ नहीं होते हैं, एक बार आपको क्वेश्चन को अप्रोच करते आने लगे तो उसके बाद आप उसको इजीली डील कर सकते हैं। बात कहाँ पे आती है कि कितने स्पीड से आप वो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, कितने स्पीड से उसको एनालाइज कर रहे हैं, ग्रास्प कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। लीगल पोर्शन के लिए आई वुड सजेस्ट, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड
current legal GK. For legal reasoning section, first thing first, आप previous year questions को solve कर लें, ठीक है? चाहे जितने बार भी पैटर्न आपका क्लैट का या किसी भी एग्जाम का चेंज हो, ये नहीं होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हेल्प नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2015 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, जो भी लीगल प्रिंसिपल दिया होगा आपको उससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आप एक बार वो प्रिंसिपल रीड किए होंगे और अगर सेम प्रिंसिपल आपको एग्जाम में दिखता है, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि हाउ टू गो अबाउट इट। ये प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी रीड किया हुआ है तो हमें पता है। So these were the 5 sections that broadly comes in any sort of examinations, not just CLAT. So please change these slides. Sir. What are the essential components to clear these exams? अब हमने ये समझ लिया कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, बट और इसके अलावा क्या जरूरी है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, डेडिकेशन। किसी भी एग्जाम को क्लियर करना हो तो आपके अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए कि नहीं भाई हमको ये एग्जाम क्लियर करना ही है, दूसरों को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद को प्रूव करने के लिए, ठीक है। खुद को प्रूव करोगे, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ोगे, आपको सिर्फ तब तक काम नहीं आएगा जब तक आप कॉलेज में हो, जब तक आपको एक अच्छा कॉलेज का आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, बल्कि तब भी जब आप जॉब करने जाओगे। जब आप जॉब करोगे तो हो सकता है अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो वहां पे अच्छी कंपनीज आपको आएंगी प्लेसमेंट के लिए लेने, ठीक है। या अगर आपको किसी दूसरे फर्दर कॉम्पिटिशन्स में जाना है या फर्दर फॉर एग्जांपल जुडिशरी में जाना है या ऐसे किसी फील्ड में जाना है, तो आपको एक एक्सपोजर ऑलरेडी वहां पे मिल चुका होगा, ठीक है, वहां उस लेवल की आपको पढ़ाई मिल चुकी होगी। तो मेक दिस पॉइंट योर डेडिकेशन पॉइंट कि भाई हमें एक अच्छा एग्जाम क्यों क्लियर करना है, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल से कॉलेज से पढ़ोगे तो शायद आपको वो एक्सपोजर नहीं मिले, ठीक है, लेकिन अगर आप एक बेटर कॉलेज से पढ़ते हो, एक टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, तो आपको वो ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, जहां पे कुछ बच्चे होंगे जो आप जैसे इंटेलेक्ट के होंगे, कुछ होंगे जो आपसे ऊपर इंटेलेक्ट के होंगे। तो आपको क्या रियलाइज होगा कि जो हमसे ज्यादा इंटेलेक्ट वाले बच्चे हैं अब हमें उनसे compete करना है, ठीक है। उनसे compete करोगे तो पहला खुद में तो सुधार होगा ही, बल्कि ये भी समझ आएगा कि आपका भी स्टेटस क्या है, आपको अभी कितना ज्यादा आगे बढ़ना है। डेडिकेशन के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि खुद से आपको compete करते रहना है। आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल कोई मॉक दिया, वो आपको क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, वो बहुत अच्छा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपको ये डेडिकेशन अपने अंदर रखना है कि ठीक है इस बार नहीं हुआ बट नेक्स्ट टाइम तो डेफिनेटली होगा। सेकेंड चीज इज एनवायरमेंट। व्हेन आई से एनवायरमेंट, आई डोंट मीन कि आप कहाँ बैठ के, आप किस रूम पे बैठ के पढ़ रहे हो। एनवायरमेंट मीन्स कि आप कितने लोगों से compete कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एग्जाम यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, या फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन के लिए आपको किसी कॉलेज का फॉर एग्जाम्पल आईपीएम एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको एक बार पता होना चाहिए कि भाई हमसे आगे कितने लोग हैं और हम अभी कितने लोगों से आगे हैं। जब आपको ये पता होगा आप कितने लोगों से आगे हो तो आपको अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और आप जब आपको ये पता होगा कि आपसे कितने लोग आगे हैं तो आपको ये डेडिकेशन आएगा कि हमें उनसे और आगे जाना है। ऐसी चीजें के लिए आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए एक कोचिंग की इंपॉर्टेंस होती है। आई पर्टिकुलरली वॉज अ कोचिंग स्टूडेंट, आई वॉजंट अ पार्ट की जो मैं घर से बैठ के ही पढ़ रही थी, ठीक है। बहुत टाइम तक मैंने घर से पढ़ने की कोशिश की, बट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि भाई सेल्फ डाउट जो आते हैं हमारे बीच, वो क्या होता है, वो हम थोड़ी देर बाद लिखते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ठीक है अगर हमारी किसी मेंटोर से बात होती है तो हम उसको क्लियर कर लेंगे। लेटर पॉइंट ऑफ टाइम वो सारे डाउट्स बढ़ते जाते हैं, अपन कंपाइल करते जाते हैं, वो बड़े होते जाते हैं डाउट्स, और फिर अपन को लगता है चलो अभी के लिए ये डाउट छोड़ो छोड़ो, ये छोटा सा डाउट है, कोई बड़ा डाउट अपन क्लियर करते हैं, ठीक है।
लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर होती है तो उसमें क्या होता है, अपन तुरंत वो क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। अगर क्लास चल रही है तो क्लास में अपन तुरंत क्वेश्चन पूछ के क्लियर कर सकते हैं, और अगर क्लास नहीं चल रही है तो अपन अपने मेंटर को तुरंत ही क्वेश्चन भेज के उनसे तुरंत आंसर पूछ सकते हैं। तो जो एक चेन ऑफ प्रोसेस होती है, जो अपन एक चेन फॉलो करते हैं लर्निंग का, वो टूटती नहीं है। जो घर पे रह के पॉसिबल है टूटना, कि अपन डाउट्स क्लियर नहीं किए, अपन समझे नहीं कि कैसे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, और वो धीरे-धीरे वो क्वेश्चंस अपन छोड़ के जाते हुए। ठीक है? यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड चीज़, एनवायरनमेंट की क्यों ज़रूरत है? कभी-कभी घर पे ऐसा मेरे साथ ये पर्सनली होता था कि जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए घर वापस आई थी, तो आई रियलाइज़्ड कि मैं बहुत ही लेज़ी हो गई थी, ठीक है? ऐसा फ़ील नहीं होता था कि अब मुझे मॉक सॉल्व करना है, कि नहीं सॉल्व करना है, ठीक है? तो वहाँ पे जब मेंटर्स और आपके फैकल्टीज़ आपको कंटिन्यू आपसे पूछते रहते हैं, आपसे टच में रहते हैं, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि नहीं, भई सर हमारी खबर रख रहे हैं, मैम हमारी खबर रख रही हैं, तो हमें थोड़ी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी होगी, ठीक है? प्लस आपके जो कोचिंग के जो कंपेनियंस होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो क्लासमेट्स थे, सो आई पर्टिकुलरली रियलाइज़्ड कि भई मेरे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस मॉक में 105 स्कोर हैं और मेरे फ्रेंड के 110 स्कोर्स हैं, तो मुझे वो अंदर से एक फ़ील आने लगती थी कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे और मेहनत करनी होगी। तो जो एक कॉम्पिटिशन का एनवायरनमेंट मिलता है, आई वुड से हेल्दी कॉम्पिटिशन का जो एनवायरनमेंट मिलता है, जो आपको अंदर से मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, वो बहुत ज़रूरी होता है, जो एक कोचिंग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड करती है। सो प्लीज़ चेंज द स्लाइड। Okay, so this is a contemporary problem as well as solution that we are facing these days. टेक्नोलॉजी अ बून, टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक आशीर्वाद के रूप में कैसे आया है, अब ये समझना। हम में से बहुत से लोग ऐसे सिटी में नहीं रह रहे होंगे जो जहाँ पे एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नागपुर में नहीं रह रही हूँ या मैं रामनगर में नहीं रह रही हूँ, तो मैं शायद विकल्प एजुकेशन से नहीं जुड़ पाती, ठीक है? पर सिंस दिस प्लेटफॉर्म, दिस कोचिंग हैज़ ऑलरेडी कम टू अ प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन सेटअप में है। मैं अपने घर से रह के ऑलरेडी सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये एक बहुत ही अच्छा अपने पास अपॉर्च्युनिटी है कि अपन को घर से दूर नहीं जाना है, अपन को हॉस्टल्स में नहीं रहना है, अपन को वो चिंता नहीं करनी है कि भई अब हम क्या खाएँ? अच्छा खाना नहीं मिल रहा है मेस में, अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं हमारे साथ, हम अपने पेरेंट्स के साथ हैं, हम अपने घर पे हैं, लेकिन साथ में साथ हम क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? क्लास का ऑनलाइन क्लासेस जो इस समय सर हम यहाँ से विकल्प एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसका एक और बेनिफिट है, वो है एक वन टू वन इंटरैक्शन आपके बीच हो रहा है। आपको बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं होगा कि भई यहाँ से हम क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं, आपको पूरी फ्रीडम है कि आप वहाँ से आंसर्स कर दो, आप अनम्यूट कर दो, आप चैट बॉक्स में लिख दो। आपको ये पूरी फ्रीडम दी गई है, ठीक है? वन टू वन इंटरैक्शन हो रहा है। आप घर में आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ पे आपको पढ़ाई के सिवा और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? So this is one thing that how technology has served as a boon for us, how we can help you to reach your goal. So it has been quite some time that I have been associated with Vikalp Education, and I realized कि सर और मैम को हर एक स्टूडेंट का नाम पता है, ठीक है? हर एक स्टूडेंट के वो स्ट्रेंथ्स, हर एक स्टूडेंट के वो वीकनेस वो जानते हैं। उन्हें ये पता है कि XYZ स्टूडेंट का ये टॉपिक वीक चल रहा है, ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग चल रहा है। दिस इज़ द बेस्ट बेनिफिट और द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी एनीवन वुड गॉट फॉर, ठीक है? अगर टीचर को ही आपके पता है कि आपके कौन से वीक सेक्शन हैं, आपके कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं, तो वो पर्टिकुलरली अपने तरफ से इंडिविजुअल लेवल पे आपको वो उस पर्टिकुलर फील्ड में गाइड करेंगे, ठीक है? Here, teachers are not just your subject teacher, your faculties. Here, they treat you as they are your mentors and they treat you as your mentees. सिर्फ आपको वो सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताते,
आपको अगर डीमोटिवेट भी फील होने लगता है तो आपको वो तुरंत गाइड करने के लिए होते हैं। आई थिंक पूरी प्रोसेस में जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि बहुत बार ऐसा टाइम आता है कि जब हम डीमोटिवेट से हो जाते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि अब हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, ठीक है? हमसे ये होगा कि नहीं होगा? 1-2 मॉक में थोड़ी हमारे स्कोर्स अच्छे नहीं आए, हम रैंक में बहुत नीचे चले गए। तो कोई ना कोई होना चाहिए जिससे हम बात कर सकें, ठीक है? सबके घर में पेरेंट्स होते हैं, अपन पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। लेकिन पेरेंट्स अपन को अगर इस फील्ड के नहीं है जिस फील्ड का अपन एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपन को ये चीज़ नहीं बता पाएँगे कि भई इस मॉक में तुमसे इस सब्जेक्ट में गलती हुई है, तुमसे इस टॉपिक में गलती हुई है, इसलिए तुम्हारे स्कोर्स वीक आए हैं। बट हियर योर मेंटर्स आर हियर टू गाइड यू कि भई आपका कौन-सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है, ठीक है? आपका कौन-सा टॉपिक वीक चल रहा है और आपको कहाँ पे ज़रूरत है ये ज़्यादा मेहनत करने की। सो दिस इज़ द बेस्ट वे पर्सनल अटेंशन जहाँ हर स्टूडेंट को एक पर्सनल अटेंशन मिलती है। प्लस सेकंड चीज़ आपको एक मेंटोरशिप भी मिलती है। मूविंग ऑन टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ प्रिपरेशन। ये जो सारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन अपन कर रहे होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ इस एग्ज़ाम तक ही काम आए। आपका ग्रेजुएशन हो जाता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद अगर आपका मन करता है कि आप सिविल सर्विसेज़ में जाएँ या आप कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बैंक के एग्ज़ाम में जाना है, आपको एसएससी में जाना है, आपको दूसरे ऐसे किसी एग्ज़ाम्स में जाना है, आपको यूपीएससी के लिए बैठना है। ये सारी प्रोसेस, ये सारी प्रिपरेशन आपको बाद में भी काम आएगी। कैसे? जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मोर ओवर वो सेम होते हैं। भले सारे एग्ज़ाम्स में थोड़ी-थोड़ी लेवल अपग्रेड कर दिया जाता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। वो क्या होते हैं? लैंग्वेज प्लस आपका एप्टीट्यूड, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लॉ स्कूल में भी आ जाते हैं, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाउ क्रिटिकल रीज़निंग सर्व्स यू एज़ वन ऑफ द मेजर एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। अगर आपकी क्रिटिकल रीज़निंग प्रिपरेशन के दौरान अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपको अगर आप कोई केस लॉ पढ़ रहे हैं, आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या अगर आप किसी ऑफ़िस में बाद में जाते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी वो चीज़ आप उसको एनालाइज़ करके आप उस चीज़ों को समझ पाते हैं। Moving on to strategies for all the exams. In my opinion, the first and foremost strategy is to keep yourself motivated. Self-motivation, I have already told you in the previous slides, how self-motivation serves as one of the major factors in clearing any exam. Second is mock analysis. I don't think I have enough words how important mocks are for your preparation. किसी भी एग्जाम में मॉक एग्जाम्स, मॉक एनालिसिस और मॉक पेपर देना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, जो पॉसिबल मिस्टेक्स हैं जो आप एग्जाम के दिन पे कर सकते हो, वो चीज़ अवॉइड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम पे गए, मैं और मेरे फ्रेंड हम एग्जाम पे गए। मैंने क्या किया, मैंने पूरे दिन एग्जाम के दिन भी मैंने पढ़ाई की। 3 बजे से मेरा पेपर था, 2:30 बजे तक जब तक मैं एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर गई, मैं क्वेश्चंस ही पढ़ती रही। ठीक है? हो सकता है वही क्वेश्चंस मेरे दिमाग में बाद में भी चलते रहें। वहीं पे मेरा जो फ्रेंड था, वो पूरे दिन उसने 1 दिन पहले तक पढ़ाई की, एक साउंड स्लीप ली, सुबह से उसने रेस्ट किया, अपने दिमाग को रिलैक्स किया और वहाँ जाके उसने एग्ज़ाम लिखा। हो सकता है उसको रिविज़न की ज़रूरत हो, जो मैं कर रही थी और हो सकता है मुझे रिलैक्सेशन की ज़रूरत हो, जो वो कर रहा था। ऐसी चीज़ें पता करने का बेस्ट ऑप्शन होता है, वो क्या होता है? आप ये सारी चीज़ें मॉक्स में ट्राई करो। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको क्या अप्रोच फ़ॉलो करनी है? आपको कौन-सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन-सा सेक्शन बाद में अटेम्प्ट करना है? ये सारी चीज़ें आप मॉक में ट्राई करो, नहीं फ़ॉलो होती, हिट करो और बेस्ट जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी, जो बेस्ट अप्रोच होगी, वो लेके आप एग्ज़ाम में जाओ। सेकंड चीज़ इज़ मॉक एनालिसिस। सिर्फ़ मॉक देना इम्पोर्टेंट नहीं है। मॉक देने के बाद उसको एनालाइज़ करो कि भई हम किस सेक्शन में पीछे छूट रहे थे। हमें कौन-सा ऐसा सेक्शन था जो हमें पकड़ के रख लिया था, हम नहीं समझ पाए थे कि उसको कैसे हमको सॉल्व करना है। आप उस चीज़ पे मेहनत करो।
हर मॉक के बाद आइडेंटिफाई करो आपके 2 वीक का जो सबसे वीक सेक्शंस हैं, सबसे वीक सेक्शंस को आप आइडेंटिफाई जैसे ही करते हो, उस पे थोड़ी ज़्यादा एम्फेसिस डालने लगो। जैसे ही ज़्यादा एम्फेसिस डालने लगोगे, वो धीरे-धीरे आपका इम्प्रूव होने लगेगा और सारे सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। सेकंड चीज़, आप अपनी रैंक और अपने मार्क्स हर मॉक के बाद एनालाइज़ करो कि भई पिछले वाले से हमारा इस वाले मॉक में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, तो हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है आगे, ठीक है? The one thing that I also followed was for time management, particularly in these competitive exams, was I installed a Pomodoro app. सबके फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, Pomodoro ऐप अप्लाई करना, इंस्टॉल करना और उससे क्या होगा, आप 25 मिनट्स, 40 मिनट्स का पर सेशन लगाना, उसके हिसाब से आप टाइमर ऑन करके क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान वो चीज़ें सॉल्व कर पाओगे। कोशिश करना जिस दिन मॉक होता है, उसी दिन मॉक देने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप वो टाल दिए बात, एक बार अगर आपकी आदत लग गई कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप टाल रहे हो चीज़ों को, तो आप टालते ही जाओगे। सो इट्स बेटर टालो नहीं, जिस टाइम पे मॉक हो रहा है, उस टाइम पे सॉल्व करो, रिज़ल्ट आता है एनालाइज़ करो, जहाँ पे वीकर सेक्शन है उसको समझो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। नहीं समझ आता है, तो तुरंत अपने मेंटर्स, अपने फैकल्टीज़ के पास जाओ कि भाई कैसे हमें सॉल्व करना है। Okay, so one person is asking which app? It is Pomodoro app. Life at National Law University. This has been my personal favorite topic because in everyday life, we don't come to meet personalities with high profile. For example, क्या तुम अपने डेली लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, या फॉर एग्जाम्पल आर्मी के चीफ जनरल मिस्टर MM नरावने हो, या फॉर एग्जाम्पल बेस्ट स्कॉलर हो इंडिया के गौतम भाटिया या मिस्टर अभिनव चंद्रचूड हो? नहीं, ठीक है? डेली लाइफ में क्या आपको ऐसा एक्सपोज़र मिलता है, ऐसे एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ से मिलने का? या फॉर एग्जाम्पल किसी मोटिवेशनल एक्टर या एक्ट्रेसेस का? आपको वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है। माय पर्सनल लाइफ एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इज़ कि ऐसे गेस्ट से, ऐसे एमिनेंट पर्सनैलिटी से मिलने का डेली बेसिस पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर्सनली एट NUJS there are so many committees, there are so many societies जो फोकस करती हैं ऐसे डिफरेंट फील्ड्स के स्कॉलर्स को बुला के उनका इनफॉर्मल टाइप का सेशंस लेने का। ना सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस किया जाता है, बल्कि ऐसे इनफॉर्मल सेशंस होते हैं। कल्चरल कमिटी होती है जो टाइम टू टाइम आपकी जो पर्सनल हॉबीज होती हैं उसको मोटिवेटेड रखने के लिए, उसको एक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर किसी को सिंगिंग या डांसिंग का शौक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप स्कूल में आते हो, लॉ स्कूल में आते हो और वो चीज़ खत्म हो जाएगी। धीरे-धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको और डेवलप करोगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र है। सेकंड चीज़, हम में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मेट्रो सिटीज़ से नहीं आते हैं, ठीक है? हमें ऐसे फ्रेंड्स भी बनाने की हेल्प मिलती है जो बहुत ऑल ओवर इंडिया से होते हैं, ठीक है? हमें हर जगह का कल्चर, हर जगह का लैंग्वेज, हर जगह की चीज़ों से एक्सपोज़र मिलता है। कैसे हम आगे जाके किस तरह के लोगों से बाहर मिलेंगे, किस तरह से हम जॉब के वक़्त ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसा एक्सपोज़र हमें ऑलरेडी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मिल जाता है। सेकंड चीज़ होती है मूट कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स और ADR कॉम्पिटिशन, दैट इज़ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन सिस्टम्स। ऐसे कॉम्पिटिशन जो आप लॉ स्कूल में अगर आते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे क्या टर्म्स हैं जो बड़े-बड़े मैंने अभी बताए, वो कितना इम्पोर्टेंट होते हैं। आप इंटर्नशिप करने जाओगे वेरियस फील्ड्स में या मैनेजमेंट में जाते हो, आप होटल्स में जाते हो, बड़े-बड़े 5 स्टार होटल्स में जाते हो, आप काम सीखते हो। सेम ऐसा नेशनल लॉ स्कूल आपको प्रोवाइड करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंडर या हाई कोर्ट्स के जजेस और लॉयर्स के अंडर आप इंटर्नशिप करो और रियल लाइफ में क्या हो रहा है वो आप सीखो। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैज़ सो मेनी थिंग्स टू ऑफर जो आप एकेडमिक्स के साथ-साथ करोगे, एंड एकेडमिक्स इन माय ओपिनियन इज़ वेरी, वेरी, वेरी ग्रेट देयर, ठीक है? आप रिसर्च पेपर्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बड़ा स्कॉलर है तो हो सकता है कभी ना कभी वो आपके पेपर को साइट करे, वो ये बताए कि हमने ये वाला पॉइंट इस स्टूडेंट के पेपर से साइट किया है,
That is a huge victory in your part कि कैसे सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बल्कि आपको एक लाइमलाइट में आने का भी मौका मिलता है. So we are done with this topic, that is life at National Law University. Any questions regarding the entire session, which was moreover a strategy plus motivational session? Any queries? Thank you so much, Aditi ma'am, for giving the insight about the strategies that one has to choose when they are preparing for any kind of preparation that they are doing. Friends, if you have any queries, please feel free to ask. Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. It was Yeah, an thank you so honor much, ma'am. to be a part of this institute as well as guiding all the aspirants. Yes, we are looking forward for that. Okay, friends, no queries, no questions. No, ma'am. Okay. So for the new joinees, this is the special offer that we are giving for next 2 days. So if you're registering with us, there will be a special offer of discount that we are getting of 10,000 rupees. And we are also available online for the live counselings, because during this pandemic, it is very difficult for parents and students to visit our center. So you can just call me and we can just go online with the counseling sessions. So that's all from our end. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Yeah, thank you. Thank you, ma'am.